Fine, fine. Okay, that's enough. So today we are planning to have a brief introduction about money and banking, how the system works, what is money, what are the different measures of money in an economy, how money supply is controlled, what are the factors affecting it, how banking system actually works, how banking as a business survives, how it affects the supply of the money, how a central bank is necessary in each country to take care of the size of the money supply and how it influences as and when required. This is slightly different from the currency interventions that we studied last, okay, in the last lecture. In the last lecture, we saw how RBI plays a role in pegging the currency as and when required, and that is what we called as managed float or dirty float, as it is known as. So most of the times, the currency is, for most part, surrendered to the forces of the market. However, when the economy so requires, then the RBI has been given the mandate to step in and take care of the valuation of the currency, isn't it? That's a different thing. We are not talking about the value of the currency vis-a-vis any other currency. We are not talking about that. Today we are talking about that the supply of the currency or supply of the money, actually, not even currency. Okay, money is a much broader term. Money is not only the currency that is floating. Money is much more than that, and that is what we are going to study. Have a brief introduction about today. In the next class, we will be studying how monetary policy instruments are used by the RBI to stabilize the macroeconomic structure of the country. Okay, today is only a brief introduction. You have already had a class, I believe, and that's why we will have a simple, brief introduction today. So let us start. When we talk about money, then the first thing that comes to the fore is, okay, ultimately you are going to talk about the size of the money supply. यही बात जो है, बात तो यही होने वाली है कि मनी जो है उसकी सप्लाई जो है वो कितनी है किसी इकोनॉमी में. ये बहुत सारे फैक्टर्स को, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिटरमिन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं. तो फिर बात आती है कि मनी को जो है पहचानने के कितने तरीके हैं. जैसे आप अपने घर का उदाहरण ले लीजिए, हमारे आपके घर का उदाहरण ले लीजिए, उसमें जो है पैसे की कितनी अलग अलग पहचान है कि नहीं है. जैसे कोई कभी कहता है कुछ पैसा गुल्लक में है कि नहीं, गुल्लक में मान लीजिए रखा हुआ. कुछ पैसा जो है वो अलग से रखा हुआ है कि ये रोज के सब्जी और इसका जिसका खर्चा है, रिकरिंग जो एक्सपेंडिचर है. कुछ पैसा जो है वो पॉकेट मनी के रूप में दिया गया है किसी को, किसी बच्चे को या किसी स्कूल गोइंग किड को. यू अंडरस्टैंड. कुछ पैसा हमारा जो है वो सेफ या अलमारी में कहीं मान लीजिए रखा हुआ है कि कोई इमरजेंसी आ जाए भैया तो क्या किया जाएगा. कुछ पैसा बैंक में रखा हुआ है, कुछ पैसा एसेट्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ हो सकता है, जिसकी जैसी परिस्थिति हो. सो पैसा जो है वो अपना स्वरूप वैसे ही बदलता है, जल की तरह है ना, कि जिस पात्र में कर दीजिए उस पात्र का आकार ले लेता है. पैसा वैसा ही है कुल मिलाकर. तो उस प्रकार से, उस दृष्टिकोण से अगर आप समझने का प्रयास कीजिए तो आप पाएंगे कि दो हिस्से में आप पैसा बांट सकते हैं. एक पैसा वो जो आपके पास है, चाहे जिस स्वरूप में है, लेकिन आपके पास है, आपके नियंत्रण में, आपके अधिकार में है. और एक पैसा वो जो आपने कहीं रख रखा है दूसरी जगह पर. मूल रूप से आप पैसे बांट सकते हैं. इसी तरह पूरी इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो पैसे का जो स्वरूप है, कितने विभिन्न स्वरूपों में पैसा जो है वो अस्तित्व में है, वो आपको अगर देखना है तो आप कह सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर्स ऑफ मनी. मनी कितने तरह का है, कितने स्वरूपों में पाया जाता है, कितने भिन्न भिन्न तरीकों से जो है वो, जिसे कहते हैं कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ मोबिलिटी में है. कहीं पैसा बहुत तेज सर्कुलेशन में है, कहीं पैसा ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस तरह से. तो डिपेंडिंग ऑन the kind of mobility and the kind of ownership that money has, it has been divided into so many classifications, so many categories in order to identify and measure it correctly. कि आज की तारीख में एक्चुअली अगर पता लगाना हो कि हमारे पास पैसा कितना है तो कैसे पता लगे, इकोनॉमी में कैसे पता लगाया जाए. तो आप घर का पैसा अपने निकालने लगेंगे तो आप जोड़ेंगे नहीं क्या
कि जो है इतना पैसा तो हाथ में ही है, कैश इन हैंड है, इतना जो उधर गुल्लक में रखा हुआ, इतना पॉकेट मनी देते हैं, इतना उधर देते हैं, तो टोटल भैया पैसा हमारे पास इतना है, और जरूरत पड़ेगी तो जो है ये फलाना जो गोल्ड है इसको बेच देंगे, उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो एफडी है हमारा, एफडी तोड़वा देंगे, है कि नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट और कमिटमेंट आपका किसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ेगा, वैसे वैसे आप मोर लिक्विड मनी से लेस लिक्विड मनी को भी आप भुनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, है कि नहीं है। ठीक वैसे ही इकोनॉमी में भी सबसे लिक्विड पार्ट जो कि हाथ में ही है, अभी के अभी दे सकते हैं, उससे लेकर जो लीस्ट लिक्विड है, सबसे कम, सबसे जिसे कहते हैं कठिनाई से जिसको प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें बहुत अधिक समय लग सकता है, जिसमें अधिक एफर्ट लग सकती है, उसको रुपए चालू करेंसी के रूप में लाने में, ऐसे एसेट भी आपके पास तमाम होते हैं। तो इन्हीं सबकी बहुत अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं और इन्हीं को मेजर्स ऑफ मनी कहते हैं। जैसे 3 नाम आप याद रखिए हमेशा, रिजर्व मनी क्या होती है, नैरो मनी क्या होती है और ब्रॉड मनी क्या होती है। तो जो विद्वान हैं उन्होंने कैसे इसको बांटा है, समझिए बात कि जो करेंसी है जो सर्कुलेशन में, ठीक है, करेंसी जो सर्कुलेशन में है, और जो कुछ डिपॉजिट्स हैं जो आरबीआई के पास है, सेंट्रल बैंक हर कंट्री में होता है। अब तो आप जानते ही हैं कि मुख्य रूप से आप बांटने पे आइए तो 3 हिस्सों में हमेशा पढ़िए, मनी और उससे रिलेटेड कोई भी अध्ययन आप कर रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसी कुछ भी पढ़ रहे हो, मनी सप्लाई, मनी डिमांड, उसको 3 भाग में हमेशा 3 उसके स्तंभ मानकर चले। एक होता है उस कंट्री की गवर्नमेंट, एक होता है उस कंट्री का सेंट्रल बैंक, और तीसरा चीज होता है कमर्शियल बैंक और पब्लिक। ये आप ध्यान रखिएगा, इन तीन जो ये 3 इसके सूत्रधार हैं। एक हो गया जो है उसका सरकार, किसी अर्थव्यवस्था की जो सरकार है वो हो गई, मेजर प्लेयर हो गया। दूसरा जो है वो खुद सेंट्रल बैंक हो गया, जो एक केंद्रीय बैंक होता है हर एक अर्थव्यवस्था में, और तीसरा होता है बाकी सब, यानी कमर्शियल बैंक और पब्लिक वगैरह। ठीक, आप उनको अलग करना चाहते हैं तो 4 स्तंभ बना लीजिए, ये पब्लिक और कमर्शियल बैंक को भी अलग अलग कर लीजिए, ठीक है, फाइन, 4 स्तंभ होते हैं। चलिए ये 4 स्तंभ ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, पहला जो आइडेंटिफिकेशन है, ये मनी का आइडेंटिफिकेशन है। जैसे बात को आप समझें कि सेम वही व्यक्ति जो है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का बहन, किसी का भाई हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, किसी का फूफा, किसी का जीजा, ऐसे नहीं है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच यू आर लुकिंग एट आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीगेशन में चेंज, वो कहने का अर्थ, नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल आई विल एडमिट, बट जस्ट टू टेल यू दैट आइडेंटिफिकेशन जो है वो बदल सकता है, ठीक है, परिभाषाओं के अनुसार, और कहां से हम उसे देख रहे हैं, उसका उस डेटा का क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके आधार पर आइडेंटिटी बदल जाती है। देखिए एग्जाम्पल सामने, अगर आप रिजर्व मनी शब्द का इस्तेमाल आपके सामने हो कि रिजर्व मनी क्या होती है, तो आप विद्वानों ने जो बनाया है, जो अर्थविद है, उन्होंने कहा है कि करेंसी इन द सर्कुलेशन, जितनी टोटल करेंसी सर्कुलेशन में है, प्लस अगर उसमें आरबीआई के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं उन्हें अगर जोड़ दिया जाए, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, और वो डिपॉजिट्स कहाँ से, गवर्नमेंट के हो सकते हैं और बैंक के हो सकते हैं। तो या कुल मिलाकर बात यह है कि करेंसी कौन इशू करता है, 2 रुपए के नोट से लेकर और पूरा जो है जितना क्वाइन वाइन सभी कौन इशू करता है, भाई आरबीआई करता है। तो आरबीआई ने जितनी करेंसी इशू की हुई है वो सर्कुलेशन में है, जो सर्कुलेशन में है वो, प्लस आरबीआई के पास जितने डिपॉजिट्स हैं वो रिजर्व मनी है, उससे क्या छेड़छाड़ आप करेंगे, वो रिजर्व मनी, ठीक बात है। उसमें गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स भी हो गए, बैंक के डिपॉजिट्स हो गए। अगली डेफिनेशन, इसको डेफिनेशन नहीं समझिए, दूसरी कैटेगरी कह लीजिए, दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या है, नैरो मनी है। तो बोला नैरो मनी का क्या अर्थ हुआ, बोला बहुत जो करेंसी से ही लेके हम जो सबसे लिक्विड है और जो सबसे कम लिक्विड है उसके बीच की यात्रा ही हम पढ़ने जा रहे हैं। बस सिंपल सी बात है, सबसे आसानी से मार्केट में चलने वाली जो चीज है और जो सबसे कठिनाई लगती है उसको मार्केट में उतारने में, तो यहां तक की यात्रा हम खाली तय करने जा रहे हैं। देखिए आप, करेंसी विद द पब्लिक, जो करेंसी पब्लिक के पास है, चाहे वो नोट्स हो चाहे कॉइन्स हो, एक वो ले लीजिए, प्लस उसमें क्या जोड़ दीजिए, पब्लिक जो डिपॉजिट्स हैं बैंक्स के पास, ठीक है, जो लोगों ने बैंकों के पास अपना पैसा रख रखा है, डिपॉजिट कर रखा है, तो घूम घुमा के वही मनी हुआ ना जो पब्लिक का पैसा है, जो पब्लिक का या तो करेंसी के रूप में है, ठीक है, या फिर उनका जो पैसा बैंक में है, 2 विभाग हो गए। अब वो करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग्स अकाउंट हो सकता है। तो शर्त इसकी यही है, शर्त इसकी यही है कि थोड़ा ज्यादा चालू टाइप का जो पैसा है, जो तुरंत फटाफट हैंड चेंज कर सकता हो, समझे,
जो तुरंत हैंड चेंज कर सकता हो, वैसे मनी की बात की जा रही है पहली कैटेगरी। बात समझ गए? तो कोई कहे कि नैरो मनी का सरलतम रूप क्या है, तो आप कहिए कि नैरो मनी का सरलतम रूप क्या है। सरलतम है क्योंकि बहुत कम 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 लोग कम धन इसमें आएगा ना। जब सबसे कम, जब सबसे अधिक लिक्विड वाला इतना है, फिर उसमें और जोड़ दीजिए तो इतना हो जाएगा, उसमें ये भी जोड़ दीजिए तो इतना हो जाएगा। आप अपने घर में देखिए उदाहरण, आपने घर का उदाहरण दीजिए। नैरो क्यों बोलते हैं इसे, ये समझने के लिए अपने घर का उदाहरण देखिए। टोटल कैश कितना है घर में अभी, सब जोड़ जाड़ डालिए तो हमारे यहाँ अगर देखिए 10,000 रुपया, 12,000, 15,000 रुपया होगा मेरे घर में। ठीक बात है। लेकिन अभी जो है हम अपना लैपटॉप बेचने पे आ जाए तो हो सकता है 50,000 रुपया मिल जाए। ठीक है, उससे भी काम ना चले, उससे भी बड़े चले जाए, टेलीविजन वगैरह सब बेचने पे आ जाए और जो बाकी चीजें हैं वो बेचने पे आ जाए। घर ही बेचे, सरकारी घर है तो खैर, लेकिन मान लीजिए मेरा अपना घर, वो घर ही बेचने पे चले आए तो और पैसा आ जाएगा कि नहीं, बढ़ता जाएगा अमाउंट कि नहीं बढ़ता जाएगा। तो नैरो मनी वो है जो तुरंत तुरंत अवेलेबल है। तो करेंसी विद पब्लिक और सेविंग्स और करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से विड्रॉ करने के लिए आपको बैंक का परमिशन चाहिए? बताओ भाई। बचत खाते से पैसा जो है आपका विड्रॉल करने के लिए उससे चाहिए। एटीएम में जो लगाते हो कार्ड, वो कहाँ से विड्रॉ करते हो भाई? सेविंग अकाउंट से तो हम लोग विड्रॉ करते हैं, समझे कि नहीं? और जो बिजनेस वाले लोग करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए परमिशन थोड़ा चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है परमिशन। सिंपल सी बात है, उसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। तो इसलिए वो तुरंत का तुरंत पैसा पब्लिक के हाथ में आ सकता है, इसलिए उसे नैरो मनी की डेफिनेशन में रख दिया गया। तो सबसे लिक्विड जो है वो ये देखिए कैटेगरी होगी। आप थोड़ा और आगे बढ़ाइए, इसी को कहा जाता था M1। इसी ये क्लासिक अभी बताएंगे, अभी थोड़ी बहुत परिभाषाएं चेंज भी हुई है, दोनों को अच्छे से समझना। एक सवाल ये एक इतना गूढ़ विषय है कि ये एक सवाल दे सकता है प्रीलिम्स में आपको, मेरा ऐसा मानना है, कभी भी आ सकता है। यूपीएससी में हो सकता है थोड़ा जो है वो दूसरे तरीके से आए, लेकिन स्टेट पीसीएस वगैरह में तो डायरेक्ट प्रश्न इससे आ सकता है, ये मेरा विश्वास है। इसी को M1 कहा जाता है। ये जो था वो M0 इसको कहा जाता है, करेंसी इन सर्कुलेशन और डिपॉजिट विद आरबीआई को M0 कहते हैं। ठीक है, M1 क्या हुआ, कोई पूछे तो बोलिए कि भैया जितना करेंसी पब्लिक के हाथ में है और जितना पब्लिक का पैसा बैंक के हाथ में है, जिसको विड्रॉ करने के लिए बैंक का परमिशन का जरूरत नहीं है, यानी जो तुरंत लिक्विड हो सकता है, फटाफट हाथ में आ सकता है, उसे M1 कहा जाता है। अब इन M1 में ये देखिए, M1 ये हो गया। M1 में अगर पोस्ट ऑफिस के पास जो डिपॉजिट्स हैं, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग डिपॉजिट स्कीम चलती है कि नहीं चलती है, तो वह अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो M2 हो जाया करता था। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट अभी बता रहे हैं आप, अभी मॉडर्न पर भी आएंगे। ठीक है, बहुत आसान हो गया। तो कुछ उसमें तो कुछ ज्यादा परेशान होने वाली बात ही नहीं है आपको। कोई पूछे M1 क्या है, जो ओरिजिनल मेथड था 1998 वगैरह स्टाइल चेंज हुआ है ना, तो ओरिजिनल जो मेथड वर्किंग ग्रुप बना था एक्चुअली, जहां तक मुझे ध्यान है, एक वर्किंग ग्रुप बना था। उसने फिर रिकमेंड किया कि इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए आप, जो जैसे जिस दिशा में जा रहा है समाज, उसमें लिक्विडिटी, लेस लिक्विड और मोर लिक्विड का इसका भी डेफिनेशन जो है आपस में मर्ज हो रहा है, तो वो देखेंगे अभी। तो कोई पूछे M1 क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से M1 क्या था, तो बता दीजिएगा कि भाई करेंसी विद पब्लिक है, और प्लस उसमें अगर आप सेविंग्स बैंक वाला सारा गेम और करंट अकाउंट वाला जोड़ दीजिए तो वो हो जाता है M1। उसमें पोस्ट ऑफिस वाला भी जोड़ दीजिए तो M2 हो जाता है। बहुत आसान है एक्चुअली ये पूरा जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो। फिर बोले कि M3 क्या होता है भाई, तो बहुत आसान है, ये तो है, ये है। M2 है कि नहीं है, ये यहाँ तक तो M2 ही हो गया। मैंने एक एक गोला बढ़ाता जा रहा हूँ बस, और क्या। यहाँ 2 गोला था, यहाँ तीसरा गोला जुड़ गया, यहाँ चौथा जुड़ गया। चौथा क्या है, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। अब देखो, आप समझे बात को। कहा गया कि आप किसी की औकात अगर पता लगाना चाहते हैं कि ये जरूरत पड़ने पर व्यक्ति कितना पैसा खर्च कर सकता है या अवेलेबल करवा सकता है, अगर आपको ये जानना, आप यही सप्लाई का मतलब क्या हुआ भाई, मनी सप्लाई का अर्थ क्या हुआ कि आवश्यकता पड़ने पर मैं एट माई कमांड हाउ मच ऑफ मनी आई कैन समन फ्रॉम ऑल माई सोर्सेज, मेरे जितने भी स्रोत हैं उनसे कितना पैसा मैं फटाफट जो है वो कैश इन हैंड बना सकता हूँ। घूम घुमा के यही बात है ना। तो कहा गया कि ये ठीक बात है आपकी कि इसमें यही 3 कैटेगरी रखना चाहिए। कौन कौन सा कैटेगरी, करेंसी जो आपके हाथ में है, सेविंग्स जो आप फटाक से निकाल सकते हैं बैंक से, और वो सेविंग्स जो आप फटाक से निकाल सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या एफडी भी फटाफट नहीं तोड़वाया जा सकता है? 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो भी लगे, लेकिन एफडी भी कुछ नुकसान सहकर एफडी भी तो तोड़वाया जा सकता है। ऐसा थोड़ा है कि महीना भर और 2 महीना लग जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अगर जरूरत पड़ने पर एफडी भी तोड़ाया जा सकता है। तो अगर
आपके वास्तविक औकात या वास्तविक हैसियत को देखने जाए कोई, तो एफडी का भी पैसा उसमें इंक्लूड करके तब आपका वैल्यू आंकना चाहिए कि नहीं भैया, जरूरत पड़ने पर वो एफडी को तोड़वा के दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि मनी की डेफिनेशन अगर आप नैरो रखते हैं तो उसमें सिर्फ करेंसी जोड़िए और वो पैसा जोड़िए जो एटीएम से फटाक से विड्रॉ हो जाएगा। समझ गए बात समझ गए? बैंक से तो फट से विड्रॉ हो जाएगा अगर नैरो डेफिनेशन रखना चाहते हैं। अगर आप इसको ब्रॉड डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो उसमें टाइम डिपॉजिट जिन्हें कहते हैं, टाइम डिपॉजिट भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि भले ही उसमें समय लगता हो और थोड़ी एफर्ट लगती हो, लेकिन पैसा तो वो भी ला के दे सकता है जरूरत पड़ने पर। तो घूम घुमा के बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप नैरो मनी से, ये देखिए, नैरो मनी से और ब्रॉड मनी की तरफ जाते हैं तो उसमें चीजें इंक्लूड होती जाती हैं। तो M1 में क्या था, 2 कंपोनेंट, M2 में 3 कंपोनेंट, और इसमें तो टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड कर लिया गया था। ये क्लासिकल डेफिनेशन थी नैरो मनी से चलते हुए ब्रॉड मनी। तो जो M1 और M2 है ये दोनों ही नैरो मनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और M1 ना भी कहो तो चलेगा ना, M2 कह दिया तो उसमें M1 आ गया ना भाई। तो आप कह लीजिए कि M1 जो है वो नैरो मनी का परिचायक है और M3 जो है वो ब्रॉड मनी का परिचायक है। नैरो ब्रॉड में अंतर क्या है कि नैरो में सारे के सारे जो है वो इजीली लिक्विड हो जाने वाले टाइप के जो है मनी है, जबकि ब्रॉड मनी में एक टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड कर लिया गया है जो कि उतना इजीली लिक्विड नहीं है, लेकिन फिर भी लिक्विड तो है, थोड़ा कम लिक्विड है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे लिक्विड बनाया जा सकता है। ये बात समझ गए सब लोग? इसमें किसी को लेकर कोई शक? अभी जितना भी आप देख रहे हैं उसमें अभी कहीं भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कोई जगह अभी नहीं बची, अभी नहीं है। अभी जितना भी आप देख रहे हैं वो जिसे कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, अभी इसमें किसी भी कैटेगरी में शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ये तो बहुत दूर आते हैं। अभी सीधे सीधे मनी से डायरेक्टली डील करने वाली चीजों की बात हो रही है, ठीक है शुभ? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं भाई। ओके ठीक है, यानी कुल मिलाकर सबको ठीक समझ में आ रहा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ भाई। ऑलराइट, तो भाई अब देखते हैं कि आगे इसको बढ़े कि फिर जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है उससे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या आया। तो देखिए क्या चेंज आया। 2 महत्वपूर्ण बदलाव हैं, इस बदलाव को ध्यान रखिएगा, पता चला इसी से सवाल आ जाए। पहला बदलाव ये है कि जो पोस्टल डिपॉजिट्स थे उनकी गणना करना छोड़ दिया गया। बोला ये क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा देखिए ये मॉनिटरी सप्लाई का मैटर है, इसमें जो प्योरली बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्योरली बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ उन्हें हम इंक्लूड कर रहे हैं। वर्किंग ग्रुप ने ये रिकमेंडेशन दिया कि ये पोस्ट ऑफिस वगैरह को छोड़िए, जो प्योरली बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको शामिल करिए। पोस्ट ऑफिस वाले को एक दूसरा हम बताएंगे, आप उसमें शामिल कर लीजिएगा। अभी मनी का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके लिए अगर आप मेरी बात माने तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वाले डिपॉजिट्स वगैरह की बात करें, ठीक। पहला चेंज ये कि पोस्टल डिपॉजिट्स को ड्रॉप कर दिया गया है। दूसरा चेंज क्या है कि इसमें दूसरा चेंज ये है महत्वपूर्ण कि इसमें सही मनी सप्लाई का इंडियन ओनरशिप, रेजिडेंशियल ओनरशिप जानने के लिए कि पैसा तो बहुत है लेकिन पता चला बहुत सारा पैसा ऐसा है जो बाहर के लोग होल्ड कर रहे हैं, है तो यहाँ का लेकिन बाहर के लोग उसे होल्ड कर रहे हैं। तो जो रेजिडेंट्स कितना पैसा होल्ड करते हैं, और रिफाइन करना है अगर आपको मनी सप्लाई के मेजरमेंट को अगर और रिफाइन करना चाहते हैं आप, तो आप उसमें रेजिडेंसी का क्राइटेरिया भी लगा दीजिए और ये पता लगाइए कि कितना डिपॉजिट इसमें से रेजिडेंट लोगों का है। बहुत ही आसान, ठीक है। तो उन्होंने जो है बनाया कि दूसरा एक नया क्राइटेरिया बनाया जो इस समय अब आपके स्क्रीन पर, ठीक है। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा ये जो नए, इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको किताबों, NM न्यू, N मतलब न्यू, NM1 NM2 ऐसा करके भी मिलेगा कहीं कहीं, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, यही चीज है, नया वाला की बात हो रही है। तो कहा गया इसका क्या, इसमें क्या क्या चेंज हुआ है भाई जरा बताइए ना। तो बेसिकली वही है, बेसिकली कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो, चिंता नहीं करने की जरूरत है, कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स है बस। तो M1 क्या है भाई? M0 तो वैसे का वैसा ही है, ठीक है, उसमें परेशान होने की जरूरत है। M1 में क्या चेंज कर दिया गया? बोला ये तो था ही पहले भी, ये आप देखिए, अगर खुद देखिए तो करेंसी तो था ही, डिमांड डिपॉजिट ये भी तो था, ये तो था ही मोर और लेस, ये तो सारे थे। RBI के पास जितने भी डिपॉजिट थे वो थे,
जिस तरह के जो डिमांड डिपॉजिट थे वो भी थे, और फिर आरबीआई का भी डिपॉजिट इसमें, जो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स है प्लस आरबीआई के जो डिपॉजिट्स हैं उसको भी इंक्लूड किया गया। बोला ये क्या है, ये अदर डिपॉजिट्स क्या होता है? आरबीआई आरबीआई के यहाँ किसका डिपॉजिट रखती है? आरबीआई के डिपॉजिट का हिस्ट्री क्या कहना चाह रहे हैं? अदर डिपॉजिट्स का क्या अर्थ हुआ भाई आरबीआई में? मैं बता देता हूं आपको। कुछ एक प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को यह फ्रीडम होती है, यह दिया गया है अधिकार, जैसे एक्स गवर्नर हुए आरबीआई के, इन सबको यह अधिकार है कि वो आरबीआई को अपने रेगुलर बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे? आरबीआई को आरबीआई जब बैंकिंग फंक्शन का काम करता है किसी के लिए भी, कुछ गिने चुने लोगों के लिए करता है, तो वो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो सब आ गया, अब आप समझ गए बात? तो वो लोग भी चाहेंगे तो आरबीआई से फट से पैसा विड्रॉ कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? उनके लिए तो नॉर्मल बैंक जैसा है ना, आप समझे मेरी बात? तो अब तीनों आ गया इसमें। करेंसी तो ये है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्यों नाम बोलते हैं? क्योंकि जो डिमांड करने पर ही फट से मिल जाए, तो डिमांड डिपॉजिट वही सेविंग्स वाला और वो सब जो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे। और जो टाइम डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें टाइम लगता है, ऐसा समझ लो, याद रखते हैं। टाइम डिपॉजिट का वैसे मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी से पहले आप उन्हें विड्रॉ नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें टाइम डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है? डिमांड डिपॉजिट मतलब डिमांड पे आप, हम कहें कि ये वाला चीज इनको दे दो हमारी बिहाफ पे, तो वो दिया जा सके, ठीक है? हम बैंक को बोले कि हम ये चेक इशू कर रहे हैं, पैसा इनको दे दो, ये मेरी डिमांड है, तो वो देना पड़ेगा बैंक को। तो ये एफडी चेक करके एफडी किसी को दे सकते हो चेक इशू करके? नहीं ना, आप समझ गए, ठीक। तो करेंसी हो गया, डिमांड डिपॉजिट्स हो गया जो बैंक्स के पास है, और आरबीआई अगर किसी के लिए बैंक जैसा काम करता है उसके पास जो डिपॉजिट है वो वाले डिपॉजिट, इन तीनों को मिलाएंगे तो M1 हो जाएगा। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, साफ सुथरा डेफिनेशन हो गई, ठीक है? M2 में क्या है? M2 में अब ये सब नए कॉन्सेप्ट हैं कि M1 तो हो ही गया। पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता था? M2 में क्या चीज बढ़ जाती थी? पोस्टल डिपॉजिट बढ़ जाते थे, याद है? लेकिन अब हमने तय कर लिया कि नहीं, पोस्टल डिपॉजिट इसमें नहीं शामिल करेंगे, नई डेफिनेशन में पोस्टल डिपॉजिट नहीं आते हैं मनी एग्रीगेट्स के लिए। तो बोला कि तो फिर क्या कंपोनेंट आप जोड़ रहे हैं? तो वही एक चेंज है खाली। क्या M2 में वही एक चेंज है कि अब हम पोस्टल डिपॉजिट को नहीं काउंट करते हैं? बोला नहीं, एक डिलीशन है और एक एडिशन है। पोस्टल वाले डिपॉजिट्स को हटा दिया, एक तो चेंज ये है, और दूसरा चेंज ये है कि एक चीज जोड़ी भी है। बोले क्या, कौन सी चीज जोड़ी है? कि रेजिडेंट्स के जो शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स हैं, शॉर्ट टर्म वाले, 1 साल की मैच्योरिटी से कम वाले कह लीजिए, समझ गए बात? जो 1 साल से मैच्योरिटी के कम हो, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो होंगे उसको भी जोड़ लिया गया है, तो वह M2 हो गया, ठीक? समझ गए बात? मैं फिर से आपके सहूलियत के लिए फिर से बता देता हूं। नई M2 के डेफिनेशन और पुराने M2 के डेफिनेशन में 2 मुख्य अंतर है। नंबर 1 कि अब हम पोस्टल डिपॉजिट्स को नहीं गिनते हैं। नंबर 2 कि अब हम, पहले क्या था, M2 में कभी भी टाइम डिपॉजिट नहीं आते थे ना, M2 में टाइम डिपॉजिट नहीं आते थे, सिर्फ पोस्टल वाला एक एडिशन हो जाता था, वो भी सेविंग्स वाला, याद है? वो भी सेविंग्स वाला। अब चेंज आ रहा है कि उसमें 1 साल की मैच्योरिटी, किससे कम की मैच्योरिटी वाले टाइम डिपॉजिट्स को भी जोड़ा जा रहा है जो रेजिडेंट्स के हो। तो M2 थोड़ा सा जो है, M2 जो है वो M1 की तुलना में इसी एक पॉइंट पे M2 बढ़ जा रहा है। दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है कि M2 और नए M1 में अंतर सिर्फ इतना है कि M1 पूरी तरह से लिक्विड, जितने लिक्विड मनी है उसका बना हुआ है, जबकि M2 M1 के एडिशन में, इन एडिशन टू M1, एक थोड़ा लेस लिक्विड टाइप का फंड भी काउंट करता है। और वो क्या है लेस लिक्विड फंड? वो है 1 वर्ष से कम की मैच्योरिटी वाले, 1 वर्ष या उससे कम की मैच्योरिटी वाले रेजिडेंट्स के शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स, ठीक? तो फिर M3, इसका मतलब M3 और कम लिक्विड होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा और कम लिक्विड होता जाएगा, ठीक बात है? तो M3 में क्या हो गया? बोला M2 प्लस लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंट्स, ओके? 1 साल से ऊपर वाला भी अब देखिए जोड़े ले रहे हैं, ऐसे डिपॉजिट जिनका मैच्योरिटी 1 साल से ऊपर वाला है, वो प्लस कॉल टर्म फंडिंग। कॉल टर्म फंडिंग में इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ये चीज होती है, इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉल टर्म फंडिंग करते हैं, उसको भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो उसे कहते हैं कि ये M3 का डेफिनेशन हो गया। आप इस बात को नोटिस करें कि जो
जब आप M1 से M3 की तरफ बढ़ते हैं पुराने वाली संकल्पना में, तो टाइम डिपॉजिट का जिक्र सिर्फ और सिर्फ M3 के समय में आता है। याद है आपको? जब आप देखिए, अगर ध्यान से वापस याद करिए, मैं वापस आपको स्क्रॉल कर देता हूं। देखिए, ये फाइन लाइंस है, जल्दी समझते चलिए इसको गड़बड़ाइएगा मत करिए। पहले से क्लीन कर देता हूं थोड़ा, फिर आप देखिए। पुराने कॉन्सेप्ट में एकदम लास्ट में ही आकर टाइम डिपॉजिट का कोई भी कॉन्सेप्ट आता था। M2 में कभी भी किसी तरह के टाइम डिपॉजिट की बात नहीं की जाती थी। टाइम डिपॉजिट का पहला जिक्र सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड मनी में यानी M3 में आया करता था। अभी इन्होंने क्या किया है, M2 से ही टाइम डिपॉजिट की गणना शुरू हो जाती है। हालांकि वो टाइम डिपॉजिट, ये बात सही है कि वो जो टाइम डिपॉजिट होता है वो जो है वो कैसा होता है, 1 साल से कम वाला होता है, ये बात सही है। लेकिन गिनती तो अभी से शुरू हो जाती है और M3 तक पहुंचते पहुंचते उससे भी कम लिक्विड टाइप के मनी को काउंट और इंक्लूड कर लिया जाता है। तो वो क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो इंक्लूड हो जाती है M3 में? बोला जो M2 में ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं वो, ठीक है, प्लस जो लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स है रेजिडेंट्स के वो, ठीक है, और प्लस कॉल टर्म फंडिंग जो होती है। कॉल टर्म फंडिंग आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कॉल कर, ऐसे समझ लीजिए कि कॉल करे और जो है वो किसी से बोरोइंग कर लिया, किसी से फंडिंग ले लिया एक दिन से, ठीक है, जो है नोटिस मनी भी जैसे इसको कहा जाता है, या कॉल फंडिंग और टर्म फंडिंग का मैं आपको अंतर बता देता हूं ताकि आप समझ जाए। देखिए, कॉल फंडिंग जो होती है वो ये होती है कि इंट्राडे जिसे कहते हैं, एक दिन के लिए कोई पैसा ले रहे हैं, इधर से इधर हो रहा है, ठीक है, और जो यानी छोटी पीरियड क्या हो रहा है तो कॉल हो गया। और टर्म फंडिंग क्या हो गई कि एक्सीडिंग 14 दिन से ऊपर के लिए जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग होती है, मार्केट चलते हैं इसके, मैं आपको इसको डिटेल में भी बताऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर नाउ। अभी इसको से बियॉन्ड हो जाएगा, इसलिए अभी इतना आप समझ लें कि M3 में M2 के ऊपर 2 कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है। पहला है 1 साल से अधिक के मैच्योरिटी वाले टाइम डिपॉजिट्स जो कि रेजिडेंट्स के टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, और दूसरा होता है कॉल और टर्म फंडिंग में जितना पैसा मूव कर रहा है वो भी। इंस्टीट्यूशंस के बीच कॉल और टर्म फंडिंग के बीच में, यानी एकदम शॉर्ट टर्म और उससे थोड़ा ज्यादा पीरियड के लिए जो पैसा मूव करता है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, ताकि हर तरह के जितने भी तरह के जो वो है वो इसमें इंक्लूड किया जा सके। जितने भी तरह का पैसा मूव कर सकता है और जो पूरी तरह से ब्लॉक्ड नहीं है, ठीक है, वो उसे कहते हैं कि वो M3 में सारा कुछ आ जाए। और अब आप देख सकते हैं कि क्यों M3 सही मायने में M3, M2 और M1 में अब एक स्मूथ ट्रांजिशन है, एक स्मूथ ट्रांजिशन अब है, क्योंकि M2 जो कि मिडिल लेवल का मेजर है, जो कि बीच का सीढ़ी है, जो ठीक है मिडिल लेवल का मेजर है, उसमें भी टाइम डिपॉजिट्स की गणना शुरू हो जाती है। इसीलिए ये इतनी मेहनत हुई ही इसीलिए थी, जो वर्किंग ग्रुप बना था मनी सप्लाई पे, उसका कहना ही यही था कि हम चाहते हैं कि M1, M2 और M3 जो ट्रांजिशन है वो करेक्टली, जो पिक्चर है मार्केट की उसको करेक्टली रिफ्लेक्ट करता। इसलिए हम जो पुराने एग्रीगेट चले आ रहे हैं सालों से, रेडक्लिफ कमेटी एक्चुअली शुरुआत जो इन सब की चीजों की हुई थी, आप जाने रहे फिल्म्स वगैरह में कहीं कुछ पूछ पाछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेडक्लिफ कमेटी जो थी पहले, उसके रिकमेंडेशंस के आधार पर ये M0, M1, M2 और M3 और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अपनाए गए थे, ठीक है, ये बात आप जाने रहिएगा। पहले से जो क्लासिकल मेथड जो चला आ रहा था उसकी बात हो रही है, फाइन। ये अभी जो वर्किंग ग्रुप वापस बनाया गया उस चीज को रिव्यू करने के लिए उसने उन सभी को चेंज करके आपके सामने ये जो प्रीपोजिशन अभी आपको दिख रही है वो लेके आए, ठीक है। तो फिर लोगों ने बोला कि अरे भाई सिर्फ यही नहीं है पैसा, जिस प्रकार से, क्या आप नहीं जानते दोस्तों, क्या आप नहीं जानते कि जैसे जैसे मार्केट ग्रो किया है वैसे वैसे अलग अलग तरह के, अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकृति, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं। आप नहीं जानते क्या कि पहले क्या होता था? पहले एक तो जो पेड़ था, ये जो जिसको आप दलाल स्ट्रीट और ये सब मुंबई में बोलते हैं, वहां पर खाली एक तो बहुत बड़ा सा पेड़ था, बरगद या किसी चीज का था, उस पेड़ के नीचे जो है वो
फिजिकल रूप से लोग इकट्ठा होकर और ट्रेडिंग करते थे, जिसको आज स्टॉक एक्सचेंज जो बन गया है वो ऐसा ही तो था। तो पहले इतना प्रिमिटिव और इतना प्राइमोर्डियल टाइप का सिस्टम हुआ करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग तरह के कितने इंस्ट्रूमेंट्स आप आ गए हैं, बताइए आज की तारीख में कितने इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। शेयर्स हैं आपके पास, सिक्योरिटीज है, शेयर्स जिसे कहते हैं, फिर क्या आ गया, डिबेंचर्स हैं आपके पास, शेयर्स में भी प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये हो गया, ठीक है। फिर क्या है, म्यूचुअल फंड्स आपके सामने आ गए हैं, तमाम तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं, कितने तरह के फाइनेंशियल जो पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ गई, ऑप्शंस बहुत बढ़ गए आपके पास। तो इसलिए, और इसी को रेस्पॉन्ड करते हुए पैसे की जो सोसाइटी में रिक्वायरमेंट है, मार्केट में रिक्वायरमेंट है, उसको रेस्पॉन्ड करते हुए पोस्ट ऑफिस का भी रोल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। पोस्ट ऑफिस की पहुंच क्योंकि हमेशा से थी, पोस्ट ऑफिस तो था ही अपनी जगह पर, ठीक है, वो पैसे से लेन देन करता ही था, मनी ऑर्डर हो गया, ये हो गया, ठीक है, डिपॉजिट्स हो गए, ये भी एक्सेप्ट करता था। व्हाट एल्स, धीरे धीरे क्या आपने महसूस नहीं किया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो आ गए हैं, एनबीएफसी जिन्हें कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी उसमें कूद चुकी हैं, वो भी करती हैं, फॉर बोरोइंग और फाइनेंस का काम हो रहा है। तो आप समझिए इस बात को कि यदि बढ़ते हुए इस प्रकार के इवॉल्व होते हुए मार्केट में, मनी के मार्केट में, अगर आपको सही सही पता लगाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्योरली जो बैंकिंग का स्ट्रक्चर है, बैंकिंग हायरार्की है, उस तक अगर आप सीमित रहेंगे, तो वो हो सकता है कि मनी को उसके ब्रॉडेस्ट पर्सपेक्टिव में नहीं समझ सके। मनी इस चैनल के बाहर भी है, बहुत सारे अलग अलग स्वरूपों में। इसकी इन चैनल जो हमने आपके जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, उस चैनल से M3 ले लीजिए तो भी M3 से ब्रॉड तो कुछ है नहीं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें M3 से भी ज्यादा ब्रॉड कुछ है। M3 तो ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन हो गई, कुछ हो नहीं बचा। लेकिन सच्चाई ये है कि इवॉल्विंग मनी मार्केट के कारण आज की तारीख में अगर आप देखने जाइए इस समय, और आज ही क्या 20 साल पहले से ही, 20-25 साल पहले से ही अगर आप देखने जाए, तो मनी जो है वो इनके अतिरिक्त स्वरूपों में भी मार्केट में घूम रहा है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। इसलिए लिक्विडिटी की जब आप बात करेंगे, तो लिक्विडिटी जो है वो बहुत मनी से भी ज्यादा ब्रॉड चीज हो गई है। जो चीज आप मनी में हो सकता है काउंट ना करें, आगे चलकर वो चीज भी लिक्विडेट करके मनी बनाई जा सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो लिक्विडिटी इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट साथ साथ लाया गया। तो जो रिफाइनमेंट किया वर्किंग ग्रुप ने, उसने दो महत्वपूर्ण काम किए। एक तो पहले से एग्जिस्टिंग M1, M2, M3 की जो डेफिनेशन है उसे रिफाइन किया, उसमें से पोस्टल डिपॉजिट्स को हटाया और उसमें टाइम डिपॉजिट्स को इंट्रोड्यूस किया। ये एक अंतर आया। दूसरा अंतर एक और आया वर्किंग ग्रुप के द्वारा। वो अंतर क्या आया कि उन्होंने एक नया पैरामीटर और लेकर आए, क्योंकि आप पोस्टल डिपॉजिट्स को यहां से हटा रहे हैं, तो क्या पोस्टल डिपॉजिट की गिनती ना की जाए? बोला नहीं की जाए, लेकिन उसको मनी में मत लाइए, क्योंकि बैंकिंग वाले सेक्टर से अलग है, उसको लिक्विडिटी के परव्यू में रहने दीजिए। तो पहली बार वर्किंग ग्रुप ने मनी एग्रीगेट्स और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, दो अलग अलग तरह के पैरामीटर्स बनाए, जो कि इस समय आपके सामने है। बोला जो वहां से छूट जाए, लेकिन फिर भी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी का इफेक्ट रखता हो, उसे लिक्विडिटी वाले एग्रीगेट्स में इंक्लूड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मेरी बात को समझें। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बैंकिंग जो कैरेक्टर, बैंकिंग के कैरेक्टर के टर्म्स में जितना ब्रॉड हो सकता था, हम M3 तक हो चुके। बैंकिंग का जो क्षेत्र है, बैंकिंग का जो परव्यू है, उसमें M3 से ज्यादा ब्रॉड अब नहीं हुआ जा सकता। समझ गया मेरी बात? तो अगर अब आप उस जो रेखा आपने खींच ली है कि भाई बैंकिंग वाला हम खाली गिनेंगे, उसके बियॉन्ड क्या मनी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है? करता है। तो अब जब आप मनी एग्रीगेट्स से लिक्विडिटी एग्रीगेट्स की तरफ बढ़ेंगे, तो आप ब्रॉड होते जा रहे हैं। और ब्रॉड, क्या यह बात आपके समझ आए? यानी अगर मैं बनाने पे आ जाता तो मैं ऐसा बनाता, देखिए ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखिए, और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पर उधर नहीं जाता, यहीं पर एक और बना देता ऐसा, और इसे कह देता मैं L1।
जिसमें एंट्री तो होता ही प्लस कुछ और चीजें भी होती। अब आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ, तो ये आप बात समझ लें कि मनी और लिक्विडिटी, जब आप मनी से लिक्विडिटी की तरफ जा रहे हैं तो चीजें जो है ब्रॉड होती जा रही हैं और चीजें इंक्लूड होती जाएंगी इस तरह से। बस इतनी इतनी सी सारी बात है। तो आप देखें, सबसे पहला चीज देखिए कि क्या है ये L1 क्या होता है। तो आप मनी, और सबसे जरूरी यहां से आगे बढ़ने का कोई फायदा तब तक नहीं है जब तक आप पूरा चीजें समझ न चुके हो। तो आप मुझे बताएं कि आप इन दोनों की जरूरत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मनी का इफेक्ट और कैरेक्टर रखते हैं, लेकिन वो बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के, प्योरली बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो उससे बाहर है, इसलिए आवश्यक है कि उनको इंक्लूड करता हुआ भी कोई पैरामीटर बनाया जाए, नहीं तो वो तो बाहर ही रह जाएंगे गणना से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम इनकी बात ही क्यों कर रहे हैं। मनी एग्रीगेट्स और लिक्विडिटी के एग्रीगेट्स की अलग अलग बात ही क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको किसी एक दिए हुए पॉइंट ऑफ टाइम पर या एक टाइम फ्रेम में आपको अपनी इकोनॉमी की टोटल मनी सप्लाई का पता लगाना है, तो आपके पास अलग अलग मेथड और फॉर्मूला होना चाहिए कि नहीं, कि मनी अपने नैरोवेस्ट डेफिनेशन में क्या है, तो ये है। मनी अपने ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन में क्या है, तो ये L3 है। तो नैरो से ऐसे चलेगा, ऐसे नैरो से ब्रॉड होता है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे। अब आप समझ गए बात कि नैरो से ब्रॉड की तरफ ये जर्नी है, स्पेसिफिक चीजों से ज्यादा जनरल चीजों की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। क्लोजली कनेक्टेड चीजों से रिमोटली कनेक्टेड चीजों की तरफ हम जा रहे हैं। तो पहला ही देख लीजिए L1 क्या है। L1 में M3 पूरा आ जाता है जो अभी तक हमने पढ़ा था, प्लस और क्या आ जाता है, डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। याद आ गया, वहां पुरनके वाले M2 में जो जुड़ा था, जिसको हमने यहां ड्रॉप कर दिया था, वो अगर वापस जोड़ दीजिए M3 में, जो कि बैंकिंग सेक्टर से बाहर की चीज है, इसीलिए अलग कलर से दिखाया गया है, नीले से नहीं पीले से दिखाया गया है, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर के बाहर की चीज है, इसलिए अगर उसे जोड़ लिया जाए M3 में तो वो L1 हो जाता है, लिक्विडिटी 1, ठीक है। फिर और ब्रॉड चले जाइए, L1 तो जोड़बे करेंगे, L1 हो गया। आप देखिए L1 में टर्म डिपॉजिट्स विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जो टर्म डिपॉजिट्स हैं उसमें जो लेंडिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा लेंड करते हैं मार्केट, मनी मार्केट में इधर उधर करते हैं, वो हुए। प्लस टर्म बोरोइंग्स बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि बैंक नहीं है, जो कि परिभाषा के अनुसार बैंक की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यदि आपस में जो लेन देन करते हैं, पहला कंपोनेंट वो हुआ, लेन देन दोनों आ गया। तो डिपॉजिट्स भी आ गए और बोरोइंग्स भी दोनों आ गई। प्लस एक और चीज बस खाली, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे CD बोलते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ध्यान रखना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, वो अगर इंक्लूड कर लिए जाएं इसमें तो L2 हो जाता। बहुत आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि अब आप बेसिक चीज समझ गए हैं। वो बेसिक चीज क्या है कि कुल मिलाकर हम ये L1 L2 L3 की एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि भैया बैंकिंग की परिभाषा में से, बैंकिंग के स्फीयर में से जो कुछ बचा कुचा रह गया हो उसको भी जोड़ लिया जाए। क्योंकि आप ये बात जानते हैं, इसलिए बात सिर्फ है कि हल्का सा 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी, ये पिक्चर ही बैठ जाएगी कि अच्छा ऐसा है, बस। तो आप कभी बेसिकली कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कोई आपको ये कंफ्यूज करना चाहे कि M2 जो नया M2 का डेफिनेशन है उसमें पोस्टल आता है कि नहीं है, आप जानते हैं कि आइबे नहीं करेगा कुछ। आपको कोई भी स्पेसिफिक चीज पूछ जाए, जैसे मैं अभी आपको नहीं बताया हूं फिर भी मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यहाँ के M3 के डेफिनेशन में, ये जो M3 का डेफिनेशन है, इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा दिया गया रेजिडेंट्स, चाहे वो रेजिडेंट्स का ही क्यों ना हो, किसी का भी हो, उनके द्वारा दिया गया कोई भी टाइम डिपॉजिट इंक्लूड होगा कि नहीं? आप कहेंगे सीधे कि नहीं हो सकता है ना, नहीं होगा, क्योंकि अब आप बेसिक चीज जानते हैं कि भाई जो बैंक है ही नहीं वो नीले वाले में तो आएगा ही नहीं, उसके लिए बैंक होना जरूरी है, ठीक। तो ये बेसिक चीज आप समझ गए। अब आप तो अगर बेसिक समझ गए तो बात सिर्फ इतनी रह गई कि जो अलग अलग टर्म्स यूज हुए हैं इनको समझने की बात रह गई बस, कि भाई ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। अभी स्कोप से बियॉन्ड हो जाएगा, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसका एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, डू नॉट वरी। फिर और ब्रॉड करना हो तो L2 को लेके और उसमें जोड़ दीजिए NBFC का जितना भी डिपॉजिट है वो भी जोड़ दीजिए, मैटर खत्म। इसके बाहर अब पैसा के नाम पे कुछ नहीं बचा। तो हम वापस चलते हैं और देखिए
देखिए ध्यान से, अभी वापस चल के इसको पहले क्लीन करता हूं मैं, फिर आप इसको देखिए ध्यान से, और सब एक झटके में ही समझ में आता चला जाएगा। मैं एक ही लाइन, एक ही कहानी में बिना टूटे हुए, तारतम्यता तोड़े हुए आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए अब आप ध्यान से सुनिए। हमरे तोरे घर में जो पैसा है वो, और जो बैंक से आसानी से निकाला जा सके थे वो, ठीक है, प्लस आरबीआई जिनके लिए बैंक का काम कर रहा है वो भी तो निकाल सके थे जब चाहे तब पैसा। ये तीन चीज का मिला दो, इन तीनों चीजों को अगर मिला दो तो वो सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है जो कि आपके हाथ में आ सकता है फट से, ठीक। उससे ज्यादा अगर और पैसा चाहिए आपको, ऐसा समझो और पैसा चाहिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? तब आपको अपने जो आप कोशिश क्या करेंगे कि जो एफडी, बड़ा वाला एफडी है भाई, जो 20 साल के लिए किए थे, जो 5 साल के लिए किए, उसके काहे तोड़े पहले? उस पर तो ज्यादा नुकसान होगा ना हमारा। तो जो छोटा एफडी था, जो कम समय वाला एफडी था, उसको तोड़ देना ज्यादा बेटर, तो वो आप तोड़ देंगे, M2 हो जाएगा, ठीक। उससे भी काम नहीं बन रहा है और पैसा चाहिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपना लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी तोड़वा देंगे, ठीक है। और कॉल टर्म फंडिंग जो होती है वो, अगर आप फाइनेंशियल प्लेयर होते तब आपके ऊपर अप्लाई होता। अभी समझ लीजिए कि एक कंपोनेंट और जुड़ जाएगा तो M3 में पहुंच गया। इससे भी काम नहीं चल रहा है, आरबीआई को पता नहीं चल रहा है इससे सही कि टोटल पैसा कितना है मार्केट में, क्योंकि अभी तो सिर्फ बैंक ही जोड़ा है, अभी सिर्फ बैंक आए हैं। अब बैंक से बाहर चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो बैंक वाला पूरा, बैंक में जितना पॉसिबल मनी था वो सब M3 में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बैंक से बाहर, बोला पोस्ट ऑफिस, सिंपल सी बात है, पोस्ट ऑफिस वाला हम विड्रॉ कर लाते हैं, अभी ले लीजिए। बोला ठीक, चलो ये भी हो गया, तो ये क्या L1 हो गया। बोला पोस्ट ऑफिस के अलावा भी कोई और है जो नॉन बैंकिंग फील्ड में, पोस्ट ऑफिस के अलावा भी है जो पैसे का इधर उधर, बोला करता है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और करते क्या, जितने भी एफआईज हैं वो आपस में डिपॉजिट भी होते हैं और उनकी लेंडिंग बोरोइंग भी होती है, यही तो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बोला ठीक है, उनका भी जोड़ देते हैं। और जो लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू होते हैं वो उनके द्वारा, सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ही बात की जा रही है, चिंता मत करिए, इसको हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। तो इसको एक छोटे से इसमें लिखना हो तो एफआईज लिख लीजिए, कि एफआईज का सारा लेना, यहाँ क्या लिख लीजिए, पोस्ट ऑफिस, यहाँ एफआईज और यहाँ एनबीएफसी। चलो कुछ और ना याद रहे तुमका तो ये तीन चीज याद रखो, ठीक है, कि L1 में जो अभी तक पढ़ के आए हो उसमें पोस्ट ऑफिस जोड़ दो, L2 के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सारा लेन देन जोड़ दो, और L3 के लिए एनबीएफसी को भी ले आओ, उनको भी ले आओ, हो गया खत्म। तो अब कंट्री के मनी सप्लाई में इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता, ठीक है। M1, M2 और M3 तो यही इंक्लूडेड है इसी में, प्लस L2 हो गया, प्लस किया L3 हो गया, खत्म, कुछ बचा ही नहीं। ये सारी चीजें आप जोड़ते जाएंगे तो आप सारे एग्रीगेट सब आपके समझ में आ गए। तो पता, तो अब आप ये भी जानते हैं कि इसे जान के हम करेंगे क्या, सर ये सब क्यों बता रहे हैं आप, इससे हमको क्या मतलब? एक तो ये कि कंफ्यूज करने के लिए आपको सवाल दे सकता है, और आप सोचिए, आप क्या आप पहले से नहीं पढ़ते रहे हैं इसको? मैं सब तो है नहीं कि नया नया पढ़ा रहा हूँ। आप कोई भी किताब उठाएंगे इकोनॉमी की तो ये तो बताता ही है, M1 M2, आप जब भी मनी सप्लाई पढ़िएगा तो आपको ये जरूर बताएगा। और जो समझ ले जाते हैं, मेरा सलाम है उनको, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि जो है, आप देखिएगा, हमेशा ये महसूस किया है मैंने कि ये एक ऐसी M1 M2 ये निकल जाता है दिमाग से, क्योंकि उसका बेसिक जो फंडामेंटल है, व्हाई एट ऑल वी आर डूइंग दैट, तो वो फिर कहीं ना कहीं आगे 3 महीना बाद, 4 महीना बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे जैसे अभी हमने पढ़ा, अब आपको मालूम है कि देयर इज अ डायरेक्शनैलिटी, ठीक है। आपको अलग अलग टुकड़े टुकड़े में याद करने की जरूरत नहीं कि M1 क्या होता है, M2 M3 क्या होता है, नहीं। अब आप बिल्डअप कर रहे हैं, आप एक ईंटा लेके 2 ईंटा, 4 ईंटा, 5 ईंटा अब आप लगा रहे हैं, तो अब आपके कॉन्सेप्ट्स, ऐसी मेरी उम्मीद है कि बेटर तरीके से आपको समझ में आया होगा। यस रमाकांत, बिल्कुल सही बात है। किसी भी समय, किसी भी दिए हुए तारीख को या किसी भी दिए हुए समय में अगर आपको टोटल मनी का सप्लाई पता लगाना है तो आप इन्हीं सब डेफिनेशंस के थ्रू जाएंगे, पूछेंगे M1 कितना है भाई, M2 कितना है, अच्छा M3 कितना हुआ। अब ये अलग अलग, तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए दोस्त कि सर इतना इतना कचर कचर क्यों कर रहे हैं? अगर मनी का सप्लाई पता लगाना है तो L3 हो गया ना, सीधे L3 हो गया ना, तो ये बाकी का कैटेगरी क्यों है? ये भी सवाल उठना चाहिए कि बाकी की कैटेगरी हम क्यों याद रखें? नहीं, इसलिए याद रखना है, इसलिए अलग 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 कैटेगरीज का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। जब मॉनेटरी पॉलिसी में कोई डिसीजन लेना होता है कि हम किसको इफेक्ट करना चाहते हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि एनबीएफसी पर प्रभाव पड़े, क्या हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर प्रभाव पड़े,
क्या हम ये चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस का जो लेन देन है पब्लिक से उसको हम डिस्करेज या इनकरेज करना चाहते? आप समझ गए मेरी बात, कि हर एक कैटेगरी का डिसीजन मेकिंग में अपना एक रोल है कि भाई ये जो समस्या देश के सामने आई है इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ M2 तक चले जाइए तो हो जाएगा, उससे ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पॉलिसी में M2 तक के कैलकुलेशन लेके आप उसके आधार पर डिसीजन मेकिंग कर दीजिए तो हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो सभी के हर एक कैटेगरी का जो स्पैन है, जो इफेक्ट करने का जो जिसे कहते हैं परव्यू है, वो अलग अलग है। तो पॉलिसी डिसीजन जब लिए जाते हैं तो अलग अलग इन सभी पैरामीटर्स का कंसिडरेशन किया जाता है कि भाई कहाँ किस लेवल को अफेक्ट करना है हमको, क्यों हमको जो है, या पूरे को ध्यान में रखा जाए या सिर्फ इतने को रखा जाए। दैट्स कैसे एग्जैक्टली वो होता है वो भी हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा, चिंता न करें। कैसे ये काम आते हैं ये हम पढ़ें। मनी के बारे में थोड़ी और चीज जानिए कि मनी का फंक्शंस आखिर होते क्या है। ये थ्योरी है देखिए तो, लेकिन क्योंकि टोटल लगेगा दो मिनट जैसा, इसलिए क्यों नहीं जान लेना चाहिए, एकदम जो है अनपढ़ टाइप का क्यों रहिए आप, मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो जानिए। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है वो, ध्यान रहे आप, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। कैसे भाई, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप बताइएगा। चलिए मानिए कि मनी का आविष्कार नहीं हुआ है, ठीक है, मनी की खोज ही नहीं हुई है, तो फिर पहले जमाने में क्या होता था? आपको क्या बोलते हैं, क्या था वो? हाँ ये देखिए चैट बॉक्स में भी आ गया, बार्टर सिस्टम बोलते हैं ना। अभी भी गांव में तमाम जगह पर हुआ, मैं अपने बचपन में तो देखबे किया हूँ। बार्टर सिस्टम होता था, वो जो याद करो उस चीज को कि जो वो आता था, जो अगर तुम लोग गाँव रहे हुए हो तो याद है कि वो लोग आता था जो साड़ी लेके आता था, बर्तन लेके आता था, उसके साड़ी सारा इकट्ठा करता था या बर्तन इकट्ठा करता था, उसके बदले में साड़ी दे जाता था। याद होगा तो याद होगा सब। एक बार्टर सिस्टम वो भी हो गया। आपस में बार्टर होता था, ढाबली पे जो है दुकान पे होता था कि इतना किलो आलू ले लो, इतना किलो ले लो। आइसक्रीम वाला होता था, खीरा। हम लोग इतने बदमाश रहे सॉरी, हम और जो जितना भाई लोग रहे सब जो है जो साइन बोर्ड, अब तो खैर बचपन के अपराध थे और उसमें क्या, अब तो जेल होगी नहीं आई बिलीव। तो क्या है कि जो साइन बोर्ड लगा रहा जो सरकारी टाइप का, वो साइन बोर्ड का लोहा तोड़ के बेच के जो है खीरा खा लिया हम लोग, पूरा खीरा खा डाले, जितना भी 2-4 किलोमीटर में लोहा मिला उसका। तो ऐसा भी होता था कि नहीं, अलग अलग तरीके का बार्टर, जो है बार्टर का इस्तेमाल हम लोग अच्छे से जानते हैं। कोई होता रहा तो किलोमीटर का पत्थर उखाड़ ले गया, उस पर कपड़ा छांट रहा है गाँव में जाके करके, तो कपड़ा धोने के लिए उसको करने के लिए ऐसे बदमाश में हम लोग ये सब नहीं किया भाई। ऐसा हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं, इतना घास ले, बच्चे थे तो थोड़ा बहुत। तो बार्टर सिस्टम है, लेकिन बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम क्या है? आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एस्पेक्ट। What's the issue with barter system? The problem with barter system is, let's take an example, a hypothetical example. That suppose ऋषभ है, ऋषभ का हर बहुत मजा आ रहा है, तो अब सुनो, ऋषभ का अगर बहुत मजा आ रहा है, मजा होता रहा, तो अब सुनो कि मान लीजिए ऋषभ जो है वो ऋषभ जरा चैट बॉक्स में लिखो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इंजीनियरिंग है। सपोज मेरा बेटा हो गया दुष्यंत हो गया, ठीक है, तुम सब लोग भी बच्चा जैसे ही हो, लेकिन दुष्यंत हो गया। अब दुष्यंत को मान लीजिए मैं चाहता हूं कि एक अच्छी जो है वो इंजीनियरिंग की कोचिंग मिल जाए, ठीक है, तो बहुत आसान है, हम इस चीज का बार्टर कर सकते हैं। अभी बाकी एथिकल क्वेश्चंस और इमोशनल बॉन्ड को रहने दीजिए। मान लीजिए इमोशनल बॉन्ड नहीं है, एक नॉर्मल पब्लिक की तरह मार्केट में हम आए, तो हम चाहेंगे कि ऋषभ हमारे बेटे को इंजीनियरिंग का जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ा दे, ठीक है, हम ये चाहेंगे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का ट्यूशन दे। लेकिन फॉर दैट टू हैपन देयर हैज टू बी सम क्विड प्रो क्वो ना। I should have something to offer. I don't have. Suppose money is not yet invented in the society. अभी मनी का आविष्कार नहीं हुआ है, तब क्या होना चाहिए? I should have something. I must have something that Rishabh needs. ठीक है, तो वहां जो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसे कहते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसको मैं लिख देता हूं, आवश्यकताओं का क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंस हो जाए, संयोग, दो चीजें साथ साथ घट रही हूं। कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो हमारी वांट, मेरी जरूरत और आपकी जरूरत, उनका संयोग बैठ जाए तो बार्टर बहुत इजी हो जाता है। जो भी एग्जांपल अभी तक हमने लिए वही तो है कि उसको लोहा चाहिए, हमको कुछ सामान चाहिए खाने का या कुछ भी, तो हमारा बार्टर हो गया। लेकिन आप इमेजिन करिए जो सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं, एकदम सही जाए, वही बात हो रही है कि हमारी नीड्स तो दोनों के, लेकिन वो मैच नहीं कर रही है। मान लीजिए ऋषभ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास आज की तारीख में, एग्जाम्पल लीजिए तो ठीक है, मैं उसे यूपीएससी का पढ़ा सकता हूँ ऋषभ को, और ऋषभ उसके बदले में मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकता है। लेकिन सपोज दिस रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट, I do not have anything to offer. मैं एक्चुअली
मान लीजिए म्यूजिक पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं म्यूजिक का टीचर हूं, मान लीजिए, हूं भी म्यूजिक का टीचर हूं भी, तो मान लीजिए मैं म्यूजिक का टीचर हूं, लेकिन ऋषभ को इंटरेस्ट नहीं है म्यूजिक, तब क्या करेंगे, तब क्या तरीका है, तब अब मैं जाऊं एक ऐसा घन चक्कर पकड़ूं जिसको खुद म्यूजिक सीखना हो, और जो कुछ ऐसा सिखा, और मान लो ऋषभ को जीएस पढ़ना है और मुझे जीएस नहीं आता, तो मैं ऐसा आदमी ढूंढूं जिसको मुझसे जो म्यूजिक पढ़ ले और उसके बदले में ऋषभ को जीएस पढ़ा दे। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाउ बार्टर सिस्टम कैन बिकम सो कॉम्प्लेक्स एंड सो डिफिकल्ट टू अचीव इफ देयर इज नो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर डायरेक्ट कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है तो ये दिक्कत कर देगा। इसलिए इसलिए इसे ही कहते हैं इनएफिशिएंसी ऑफ बार्टर सिस्टम, और क्योंकि वो डिपेंड करता है कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पे। लेकिन मान लीजिए मनी का आविष्कार हो चुका है तब, तो ऋषभ ट्यूशन पढ़ा देगा, मैं उसे पैसे दे दूंगा, वो किसी को पैसा देके जीएस पढ़ लेगा। दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इसलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है वो ये है कि वो बार्टर सिस्टम की इनएफिशिएंसी को ओवरकम कर देता है फट से, क्योंकि मनी जो है वो एक्सचेंज सिस्टम का, एक्सचेंज के मीडियम का काम करता है। पॉइंट नंबर 2, कैरेक्टर नंबर 2, स्टोर ऑफ वैल्यू। लोग पैसा क्यों स्वीकार कर लेते हैं? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए बार्टर सिस्टम चल रहा है, ठीक है, हम जो है ऋषभ को, मान लो ऋषभ, वही एग्जांपल लेते हैं कि ऋषभ जो है वो पढ़ा रहा है, और हम मान लीजिए खेतिहर किसान हैं और हम सब्जी उगाते हैं, ठीक है, और हम उसको सब्जी दे देते हैं, लेकिन उसके वैल्यू, जो जिस वैल्यू का वो पढ़ा रहा है उसकी वैल्यू इतनी है कि हम उसको 10 किलो देना पड़ेगा टमाटर, तो 10 किलो टमाटर हम दे दिए, ठीक है, लेकिन 5 किलो उसमें से पेरिश हो जाएगा, उसका कंजम्पशन ही नहीं है उतना रोज का। मान लीजिए, पता नहीं अभी सब कितना टमाटर खाते, उस पर मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, हाइपोथेसिस के लिए, कि मान लीजिए टमाटर का कंजम्पशन उसका नहीं है, और वो 5 जो है वो एक गिवन पीरियड के बाद वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन मनी के साथ ऐसा है क्या? नहीं। आज जो पैसा दिया गया है वो महीना भर बाद भी उसी वैल्यू का रहेगा, 6 महीना बाद भी उसी का वैल्यू का रहेगा। वो वैल्यू को स्टोर करके रखता है और वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होने पाती है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो सेकंड पॉइंट इज कि मनी, वी ऑल ऑफ अस जो है वो एक्सेप्ट करते हैं मनी, इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आज जो इसकी वैल्यू हमें मिली है वो वैल्यू हम कल को जाकर इसको भुना सकते हैं, उसको एनकैश कर सकते हैं। दैट इज व्हाई। थर्ड पॉइंट इज इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ अकाउंट। ये आप पहले से ही जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं दूसरे कंटेक्स्ट में, कि भाई हमारे पास, आपके पास एजुकेशन है, हमारे पास सब्जी है, वैल्यू का डिटर्मिनेशन कैसे होगा? बहुत डिफिकल्ट है ना। देखो सामने जया ने लिखा ही है, वैल्यू डिटर्मिनेशन इज डिफिकल्ट, एकदम सही बात। और उसी प्रॉब्लम को ये तीसरा पॉइंट सॉल्व करता है। आप सोचकर देखिए कि मैं उसका, अगर मनी नहीं रहता तो ऋषभ के द्वारा मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाए गए का वैल्यू मैं कैसे आंकता? टाइम, एनर्जी, और उसका टाइम, उसका एनर्जी और उसका इंटेलेक्ट, ये 3 चीज इन्वेस्ट हुआ, उसको मैं कैसे लगाऊंगा, उसका बदला कैसे दूंगा? मैं कैसे जानूं कि 10 किलो टमाटर के बराबर है? आई कैन नॉट नो दैट, क्योंकि उसका मेजरमेंट दूसरा है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, और ये मटेरियल है टमाटर। तो आई मे नॉट बी जस्टिफाइंग बाय पेइंग 10 kilograms ऑफ, और मे बी आई एम ओवर पेइंग। ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी को ओवर पे कर दे रहा हूं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ अकाउंट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट इन एब्सेंस ऑफ मनी। लेकिन मनी होने की वजह से मार्केट, आप पता कर सकते हैं कि 1 घंटे का गणित का ट्यूशन लगभग इतने रुपए महीने का होता है, तो मैं उतना पैसा आपको दे देता हूं। मनी होने से ये फायदा होता है कि वो यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह भी काम करता है। अगर मैं लीटर में नापता हूं दूध, अपना नापूंगा ही, अब हमारे यहाँ जो दूध पैदा होता है उसको लीटर में नापता हूं, आप सब्जी पैदा करते हैं, आप किलो में नापते हैं। कैसे कैसे कितने लीटर दूध का कितना किलो सब्जी मुझे लेना चाहिए? हो गई डिफिकल्टी की नहीं हो गई? इसका मेजरमेंट दूसरा है, उसका मेजरमेंट दूसरा है, इसकी वैल्यू दूसरी, उसकी वैल्यू। लेकिन मनी, अगर मनी एक कॉमन डिनोमिनेटर की तरह आ जाता है तो बता देगा कि भाई दूध का दाम 50 रुपया लीटर है, 100 रुपया लीटर है, और आप जो पैदा कर रहे हैं उसका जो है 50 रुपया किलो, तो आप 2 किलो दे दीजिए इनको, 1 लीटर दूध इनसे ले लीजिए। That's what it does. So यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह भी ये काम करता है और इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है गुड्स का। सबसे बड़ी दिक्कत तो इसी में आएगी ना। देखो आप समझ रहे हो ना, स्क्रीन पर अपने देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत तो सर्विसेज का वैल्यू डिटरमिन करने में बहुत दिक्कत आएगा ना। अगर मनी नहीं होगा तो सर्विस का वैल्यू तो डिटरमिन हो ही नहीं पाएगा। इट्स सो डिफिकल्ट। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, इसीलिए ट्यूशन का एग्जांपल लिया। फिर
आगे बढ़िए थोड़ा सा कि ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी हम समझ गए कि मनी इस तरह से काम करता है, इसीलिए सोसाइटी में जो है वो इवॉल्व हुआ और इस तरह से हमारे साथ है। फाइन। मनी के डिमांड का क्या मैटर है, हमको मनी कितने रूप में चाहिए होता है, हमको आपको, हम हाउस होल्ड सेक्टर के लोग हैं, अभी हमने ब्रीफली डिस्कस भी किया था इंट्रोडक्शन के समय, वही है। 3 तरह की डिमांड मानी जाती है मनी की, ट्रांजैक्शंस डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड और स्पेक्युलेटिव डिमांड। ठीक है, ट्रांजैक्शंस डिमांड सिंपल एग्जांपल देकर आपको बताता हूं कि जो पैसा आप जानते हैं कि इतना पैसा तो खर्च होना है इस हफ्ते, उतना आप अपने कैश इन हैंड रखेंगे ही रखेंगे। जो आपकी क्रिस्टलाइज्ड लायबिलिटीज हैं, विच यू नो दैट दिस इज योर डेली एक्सपेंडिचर, वो आपका हो गया। कितना रुपए का सब्जी आना है, कितना रुपए का दूध आना है, ये आप जानते हैं, वो पैसा जो आप हाथ में रखे हुए हैं वो हो गया। लेकिन आपका लौंडा गया जो है मार करके चला आया अस्पताल में, उसका इलाज करवाना है, पता चला, ठीक है हमरे जैसा निकल गया मान लीजिए, और जाके कूट काट करके मारपीट करके आ गया, तो उसका हाथ गोड़ टूट गया, पुलिस थाना या वकील रखना, ये करना है, ये अनसीन अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है। ओके, तो ये आप प्रिकॉशनरी तौर पर रखते हैं कि जब इस टाइप का लड़का पैदा हो गया तो कभी 5-10 हजार का जरूरत पड़ सकता है, तो एक तरफ अलग रखे रहो, कहीं भी कोछे में बांध के रख लो, दादा कोई भरोसा नहीं है। दैट इज प्रिकॉशनरी डिमांड। ठीक है, स्पेक्युलेटिव डिमांड क्या है कि पता चला पिता को अपने लड़के पर इतना भरोसा हो गया कि जहां पर लड़ाई हो रहा है वहां सट्टा लगा रहा है कि जो है, और पता चला लड़का भी हमारे टाइप का और बाप भी, तो सट्टा लगा रहा है उसमें, लाओ जब इतना खर्चा हो रहा है तो कमा ही लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि transaction demands is the demand of money that is required to meet your crystallized expenditures that you know they will happen most likely. The second kind of demand is precautionary demand that you do not know exactly but you guess कि हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए इसलिए रखे रहना ठीक है। और तीसरा है कि आपका जो है, आप जो है स्पेकुलेशन के लिए पैसे का इस्तेमाल करें, अगर आप वो भी बचा के रखते हैं तो वो स्पेकुलेटिव डिमांड। यही 3 चीजें मिलकर, ट्रांजैक्शंस डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड और स्पेकुलेटिव डिमांड, इन तीनों को मिलाकर जितना पैसा आप अपने घर में रखते हैं अपने पास, वही नोबेल लॉरियट ने कहा कि उसको कहा जाए दैट इज द टेम्पोररी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का जो जिसे कहते हैं अस्थायी मकान, वही है। ठीक है, परचेजिंग पावर आपकी नापी जाती है इसी से, दैट इज द टेम्पोररी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर, ये उन्होंने कहा। ठीक है, अब जानते हैं कि मनी समझ गए, हम हल्का फुल्का मनी के बारे में समझ गए, कैसे फ्लो होता है, अच्छा ठीक है ऐसे रहता है, ये जरूरत के काम आता है, जान गए। अब एक हमेशा से अचंभा नहीं होता था, बचपन में हम लोग छोटे थे तब से ये बात नहीं आती थी कि बैंक को, जो बैंक मैनेजर को ही भगवान होना चाहिए, क्योंकि ये हमको हमारे पैसे पे इंटरेस्ट देते हैं, है ना भाई, कि हमारे पैसे पे इंटरेस्ट देते हैं, तो बैंक मैनेजर डबल हो जाता है पैसा, ये हो जाता है। तो ये भगवान की जगह पर इनका ही जो पूजा लक्ष्मी जी का जो है वो स्वरूप जो है इनके अंदर है, कि कैसे अगर बैंकिंग सिस्टम कैसे प्रॉफिट कैसे कमा लेता है, हम ये समझ ही नहीं पाते थे। याद नहीं है तुम्हें कि ये दिमाग में नहीं बैठा था कि बैंक कैसे प्रॉफिट कमा लेता है भाई, जब जितना हम पैसा दे रहे हैं उतना ही पैसा तो उसके पास है, उस पर वो हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब वो कोई ऐसा बिजनेस करता होगा जिससे इंटरेस्ट से भी ज्यादा पैसा कमा लेता होगा। पहले दिमाग में आता था, अगर कोई नहीं बताता तो दिमाग में क्या आता कि बैंक जरूर कोई ऐसा बिजनेस करता है, मानो 100 रुपए पे 6 रुपए हमको देता है, तो जरूर बैंक कोई ऐसा बिजनेस करता है कि 100 पे वो 10 या 12 कमा लेता होगा, तब 6 रुपए हमको दे पाता है ना, इतना तो कॉमन सेंस कहता ही है। तो फिर मन ये होता था ना कि हम भी बिजनेस जान ले, हम बैंक में क्यों दें, वही बिजनेस ही ना पता लग जाए तो हमें सीधे 10 रुपए कमा लें। ठीक है, तो आई एम जस्ट रिकॉलिंग माई, क्योंकि मैं बहुत जो है ब्रिलियंट टाइप का स्टूडेंट तो भाई हूँ नहीं, ना कभी रहा हूँ, तो इसलिए इस तरह के सवाल मेरे दिमाग में आया करते थे। तो जिज्ञासा, लेकिन जिज्ञासा हमेशा से थी, क्यूरियोसिटी के मामले में मैं और हम सभी जो है वो अबव एवरेज है, ज्यादा नहीं लेकिन अबव एवरेज है, तो ये अच्छी बात है। आपके सवालों से भी मैं देखता हूँ क्यूरियोसिटी है आप में, और बढ़ाने की जरूरत है, बट इट्स ओके, वर्किंग लेवल्स पे है। तो बात ये आई जब मैंने इसका अध्ययन किया और समझा, तब मुझे पता चला कि अच्छा बैंकिंग एक्चुअली ऐसे काम करता है कि वो डिपॉजिटर हमारे आपके व्यवहार के आधार पर कुछ प्रिजम्पशंस बनाता है, हमारे बारे में जो प्रिडिक्ट करता है, हमारे व्यवहार को वो समझता है, इसलिए वो बैंकिंग का बिजनेस कर पाता है। कितनी गजब चीज है, मजा आ जाएगा आपको अभी सोचकर कि दरअसल बैंकिंग सिस्टम के बारे में जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा वो हमारे बारे में जानता है, हमारे बिहेवियर के बारे में, और वो करेक्टली उसे प्रिडिक्ट कर सकता है। इसलिए बैंकिंग सिस्टम सर्वाइव करता है, और सर्वाइव ही नहीं करता है, थ्राइव करता है, प्रॉफिटेबल जो है काम करता है। और वो क्या है, वो 3 चीजें हमारे बारे में क्या है जो वो जानता है। जैसे कहते हैं ना कि
आपको अपने जो दोस्त है उसके बारे में आपको अगर मालूम है, अपने दुश्मन के बारे में उसका बिहेवियर का प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं, तो यू कैन मैनिपुलेट योर कोर्स हेड। आप जानते हैं कि कौन सी चीज कहने पे आप देखते नहीं है जो टीवी वगैरह में डिबेट होते हैं, फलाने इसके खिलाफ और उनके खिलाफ, ये पार्टी के प्रवक्ता वो पार्टी के प्रवक्ता, सबको एक दूसरे की नस मालूम है कि इसमें बोल दो अभी चिल्लाएगा ये, अभी ये वो होगा, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाते हैं। नेहा हैज रेज्ड हैंड, आई विल आस्क इट इज इंटेंशनल और इट्स अ मिस्टेक। हाँ नेहा, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? तो बताइएगा, और अगर गलती से हो गया तो भी कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में भी लिख सकती हो। जल्दी बताओ तो फिर आगे बढ़े। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि देयर इज नो क्वेश्चन, इट वाज आउट ऑफ नहीं आ रही है आवाज साफ नेहा, या मैं ही नहीं सुन पा रहा हूँ? चैट बॉक्स में बाकी लोग बताइए कि ऐसा तो नहीं कि मेरे ही एंड पे गड़बड़ हो या वॉइस उनकी ही ब्रेक हो रही है। ओके ओके ऋषभ, ओके, थैंक यू फॉर द फीडबैक। फाइन, तो हम आगे बढ़ते हैं, तू चिंता मत करो नेहा, अभी मौका दिया जाएगा, तुम परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वो 3 बिहेवियर कौन से हैं जिनको बैंक समझ जाता है और जिनके आधार पर वो अपना बिजनेस को रन करता है? नंबर 1, बैंक ऐसा मान के चलता है कि जो व्यक्ति मेरे पास आया है, बैंक में पैसा जमा किया है, वो तुरंत विड्रॉ नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो लाता ही क्यों? अगर उसको कैश इन हैंड की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती तो लाता ही क्यों डिपॉजिट करने? तो पहला बिहेवियर ये प्रिडिक्शन। नंबर 2 प्रिडिक्शन कि अगर कुछ विड्रॉ करना भी पड़ा तो पूरा का पूरा विड्रॉ नहीं कर ले जाएगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि अगर कुछ लोग, जितने भी लोग हमारे पास डिपॉजिट करने आए हैं, उनमें से कुछ लोग अपना डिपॉजिट किया हुआ पैसा निकाल भी ले जाएं, तो ये रेयरली ऐसा कभी होगा, बल्कि नहीं के बराबर इसकी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे लोग इकट्ठा आ जाए पैसा मांगने कि हमारा भी दो, हमारा भी दो, हमारा भी दो। नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी इनफाइनेटिसिमली स्मॉल है। ये 3 बिहेवियर है, 3 संभावनाएं हैं जिनके आधार पर पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री रन करती, ठीक है। कैसे कैसे आखिर करता है? फिर इस एग्जाम्पल को देखोगे तो साफ समझ में आ जाएगा। ऐसे मेरी प्रत्याशा है कि आपको इससे तुरंत समझ में आ जाए। देखिए, माना हमारा किसान और वो रसोईया और वो मैडम वाला जो एग्जाम्पल है वही लेकर चलते हैं। किसनवा मान लीजिए 100 रुपया कमाया, ठीक, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसने सोचा कि यहाँ कहाँ पड़ेगा, चोरी वोरी बहुत हो रहा है, इसको बैंक में जमा कर देते हैं, कुछ इंटरेस्ट ही मिलेगा। 100 रुपया लेकर बैंक में चला गया। इस बैंक के पास कितना डिपॉजिट, अभी मान लीजिए ये बैंक का भी पहला ही ट्रांजैक्शन है, आज ही बैंक जो है वो अस्तित्व में आया है और आज ही उसका पहला ट्रांजैक्शन है। जो सरलता के लिए ऐसा एक प्रिजम्पशन मान के चलिए, 100 रुपया डिपॉजिट हो गया, ठीक है। बैंक जानता है कि ये किसान आदमी है, ये तो इसका खाना पानी तो खुद ही उगाता है अपना, ठीक है, अपना खाना पानी का सामान, राशन वासन से धरे होगा, तो बहुत ज्यादा इस बात की संभावना बड़ी कम है कि तुरंत आ जाएगा और बोलेगा कि लाओ हमारा 100 रुपया दे दो या इतना दे दो। बैंक अंदाजा लगाता है कि ये गांव में रहता है, इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, ये है वो है, तो इसके हिसाब से अगले 2 हफ्ता में 4 हफ्ता में 10 रुपए से ज्यादा इसमें से वापस विड्रॉ करने के आएगा नहीं। ओके, तो 10 रुपया जो है वो इस आदमी के बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, लेकिन 90 रुपया लेके ये बैंक उस किसनवा का 90 रुपया लेके एक बिजनेसमैन को पकड़ता है जो रेस्टोरेंट चलाता है, उसको कहता है अच्छा तुमको लोन चाहिए था ना, हम देते हैं ना लोन, हम देते हैं, लोन देते हैं आप, आइए आइए। 90 रुपए का उसको लोन दे देता है। तो इसमें एंट्री क्या होगी जी? बैंक में क्या एंट्री होगी? अरे बैंक के पास 100 रुपया है ना किसान वाला, उसमें से 10 उसके खाते में लिख जाएगा कि किसान में पड़ा रहने दो, और 90 इसके खाते में लिख, यही तो अंतर हुआ। और क्या अंतर हुआ भाई? इनको बोला कि आप हमारे में लोन चाहिए तो हमारे साथ अकाउंट खुला लीजिए, तो अकाउंट खुलवा लिए, ये बिजनेसमैन साहब अकाउंट खुलवा लिए, उनके अकाउंट में 90 रुपया जो है लिख दिया वो कि हाँ मान लीजिए कि 90 रुपया है आपके पास, दे दिया हमने लोन आपको 90 रुपए। समझ गए बात? अब फिर बैंक इसको भी इसके बारे में भी जानता है कि ठीक है लोन तो लिया है,
लेकिन ये कौन सी चीज में, अभी तो रेस्टोरेंट इसका बनना शुरू हुआ है ना, अभी अभी तो ये सब चल रहा है, फर्नीचर वर्नीचर का काम हो रहा है, तो पूरा 90 रुपया थोड़ा यूज कर लेगा एकदम से, पूरा नहीं यूज करेगा। ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन है तो भाई कभी भी खड़ा हो जाएगा हमारे दरवाजे पे, कभी भी जरूरत पड़ जाए तो ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए का जरूरत इसको पड़ेगा बस, तो 40 रुपया इसके पास छोड़ देते हैं। बाकी का 50 रुपया एक मोहतरमा है, उनको भी चाहिए था लोन, वो भी उनको कुछ अपना जो है बच्चे की देखभाल के लिए व्हाट एवर पर्सनल लोन चाहिए था, तो बोलो आप भी हमारे पास अकाउंट खुला लीजिए, इन्होंने भी अकाउंट खुलवा लिया। उनको भी जो है यही यही में से 90 रुपए में से यही 50 रुपए इनको दे दी, और फिर वो जानता है बैंक कि ये भी कौन सा तुरंत इस्तेमाल करने वाली है, इतना तो हमको मालूम ही है, तो 20 रुपया जो है इनके पास छोड़ दिया और 30 रुपया फिर यूज कर लिया, फिर जिसको 30 रुपया दिया उसमें मान लीजिए 15 रुपया छोड़ दिया, जो 15 बचा उसको फिर दे दिया। ऐसे करते करते अब आप टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जरा हमको बताओ तो, टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, नंबर ऑफ नहीं, डिपॉजिट नहीं पूछ रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो अभी तक दिख रहा है इस उदाहरण में, वो बताइए कितना है। दोनों 100 रुपया बोल रहा है, दोनों ही सही हो। मयंक तो डायरेक्ट पॉइंट पे ही बता दे रहा है, जो लास्ट पॉइंट हम बताना चाहते हैं वही है कि अगर एक तरह से एक दृष्टि से देखिए तो 100 इनके अकाउंट में, 90 इनके अकाउंट में रहा, 50 इनके अकाउंट में रहा, 30 इनके अकाउंट में रहा, ऐसे गिनेगा अगर देखने पे। लेकिन सच्चाई क्या है कि जो प्राइमरी डिपॉजिट है, प्राइमरी डिपॉजिट वो सिर्फ 100 रुपीज ही है, बाकी के सब सेकेंडरी टर्शरी डिपॉजिट्स हैं, वो इसी पैसे से बने हुए डिपॉजिट्स हैं। तो अल्टीमेटली बैंक के पास टोटल जो पैसा है वो 100 रुपया ही है, लेकिन उस 100 रुपए से ही वो क्या करता है, इसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। तो एक्सपैंड करता जा रहा है डिपॉजिट्स को, उन्हीं पैसे से वो बनाता जा रहा है। आप समझे मेरी बात? इसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लाई होता जा रहा है, वही पैसा घूम घुमा के है, लेकिन मनी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब ये तो बहुत सामान्य एग्जांपल लिया है, ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो शेफ भाई थे, जो ये रेस्टोरेंट चलाने वाले थे, इनको जो 90 रुपया का लोन मिला था ना, इसमें से इन्होंने 90 रुपया मान लीजिए जो है 90 में से 40 रुपया तो उनके पास, मानो 40 ही विड्रॉ किया। उसके बाद जो 40 विड्रॉ किया वो इन्होंने किसी और को दिया, मजदूर को। ध्यान से सुने, किसी मजदूर को, जो लोग काम कर रहे थे फर्नीचर का, उनको पैसा दिया। तो 20 रुपया का उनका सैलरी, उसके पास अकाउंट नहीं था पता चला, तो वो यहाँ बैंक में आया अकाउंट खुलवाने और उसने फिर उसमें 20 रुपया जमा कर दिया। यू अंडरस्टैंड? अभी तो एक ही लेयर की बात हो रही है। ये इट इज सो सच ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो बैंक अपना इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि एक्चुअली जो असलियत है वो पता रहे। ठीक है, समझ गए बात? अब आई थिंक दिस इज फेयरली क्लियर, वी नीड नॉट इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन दैट। तो इस प्रकार से मल्टीपल डिपॉजिट्स किए जा सकते हैं, और क्योंकि डिपॉजिट्स मल्टीपल होते हैं, ध्यान से समझिए आप बात। आप देखिए इस आदमी ने, ये जो था, ये इंटरेस्ट कितने रुपए पे देगा? 90 रुपए पे देगा कि नहीं देगा? क्योंकि लोन तो इसको 90 रुपए मिला है। जस्ट बिकॉज इसने इस्तेमाल नहीं किया इसलिए बैंक थोड़ा मान जाएगा, बैंक तो 90 रुपए पे इंटरेस्ट गिन रहा है। तो इनसे तो जो 90 रुपए पे इंटरेस्ट पा ही रहा है, इसी 90 रुपए में से जो 50 रुपया है उस पर इन मैडम से भी इंटरेस्ट पा रहा है, और फिर ये आगे करेगा तो इस 30 रुपए पे भी इंटरेस्ट पाएगा। आप समझिए आप कैसे इंटरेस्ट जो है वो हर एक ट्रांजैक्शन पे, पैसा वही 100 रुपया है, लेकिन मल्टीपल डिपॉजिट्स और मल्टीपल ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर देने की वजह से इंटरेस्ट भी मल्टीपल आता है। वही अमाउंट बार बार रिकाउंटिंग हो जाती है उसकी। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ये वाला बताइए, तब आगे बढ़ा दें कि कैसे हर एक अलग व्यक्ति से वो इंटरेस्ट लेगा, और उसको पे किसको करना है, इंटरेस्ट पे किसको करना है? सिर्फ एक आदमी को। तो अब आप इसी में एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए। देखिए आप समझिए बात, टोटल इंटरेस्ट बैंक को कितने रुपए पे करना है? प्लीज टेल मी चैट बॉक्स में। बैंक को इंटरेस्ट कितने रुपए पे? एग्जैक्टली 100 रुपए पे पे करना है, लेकिन इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे उसको मिल रहा है? 90 प्लस 50 प्लस 30। नाउ यू गेट इट? इस एग्जांपल में 170, हाँ देखिए ना, देखिए आप जोड़ते जाइए, 170 रुपए पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इंटरेस्ट? तो 170 रुपए पे इंटरेस्ट मिल रहा है और पे करना है सिर्फ 100 रुपए पे। तो आप समझ सकते हैं कि जो, और फिर यही नहीं, अमाउंट की बात नहीं है,
अभी आगे तो हम गए ही नहीं है, तो अमाउंट की भी बात पूरी नहीं हुई है। और इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? आप जो पैसा जमा करते हैं और लोन लेते हैं, उनमें दोनों में इंटरेस्ट रेट का भी डिफरेंस होता है कि नहीं? आज की तारीख में एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या है? आप हमें, हाँ, आप हमेशा पाएंगे कि जो लोन है, जो आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं या बैंक में डिपॉजिट करते हैं, इनका डिफरेंस हमेशा 1-2%, 3% का डिफरेंस ज्यादा ही रहेगा। यानी आपको देना ज्यादा पड़ेगा, मिलेगा कम। तो अमाउंट का भी हो गया गेम, मल्टीपल मनी मल्टीप्लायर वाला भी एक इफेक्ट आ गया, और इंटरेस्ट के रेट का डिफरेंस भी आ गया। अब आप समझ गए बात? इस प्रकार से बैंक जो है वो बिजनेस करता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट फेयरली। इसमें कोई बहुत ज्यादा, इस पे कोई डायरेक्ट सवाल तो आना नहीं है, लेकिन आप मैकेनिज्म ही नहीं जानते हैं, मनी मल्टीप्लायर पूछ ले या मनी मल्टीप्लायर वगैरह पूछा जा सकता है, उसके लिए सावधान रहिएगा। तो क्या आप, मैं ये बात कहूं आपसे, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बैंक को, क्योंकि ये मैकेनिज्म अब आप समझ गए हैं, तो बैंक को ये हमेशा लालच रहेगा कि किसनवा के पास जितना कम पैसा छोड़ा जाए उतना ही अच्छा है। किसनवा जो 100 रुपया दिया है हमको, उसमें से उसके अकाउंट में 10 रुपया का है, छोड़ो, यूज करो, जो होगा देखा जाएगा, है ना? एक बात ये, मैं पहला रिस्क बता रहा हूं ये, कि क्या पहला ये लालच नहीं आएगा बैंक को कि इसका जितना 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 उसमें फर्जी छोड़ना पड़ेगा उतना अपना नुकसान ही तो है, ज्यादा उठा के समेट के सारा इस्तेमाल कर लिया जाए, सबसे अच्छा। एक ये, दूसरा दूसरा ध्यान से समझिए, ये तो हुआ क्वांटम की बात कि उसमें से कितना पैसा इस्तेमाल कर डालें उतना ही अच्छा। एक तो बात ये, दूसरी बात कि एक गरीब आदमी का, एक किसान का पैसा लेके आप दे किसको रहे हैं, उससे वापस ले भी पाएंगे कि नहीं? दूसरा रिस्क ये है। दोनों पे एग्री करते हो कि नहीं? कल को जब किसान को जरूरत पड़ेगी तब कैसे आदमी को दे रहे हैं, ये भी तो एक बार देखना पड़ेगा कि नहीं, है ना? तो चलिए कोई बात नहीं, अभी पहले वाले पॉइंट पर थोड़ा दिमाग आपका लगवाते हैं। तो माना कि जैसे कि उदाहरण हमने देखा था, टोटल रुपया आया 100, किसान से डिपॉजिट जो आया वो 100, और बैंक के लिए डिपॉजिट क्या हुआ? बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो क्या हुआ? लायबिलिटी तो ये हुई, उसको वापस करना है ना। एक ना एक दिन जब वो आएगा मांगने तो उसको वापस करना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटी हुई। बिल्कुल सही बात है, इसलिए लिखा हुआ है डिपॉजिट लायबिलिटी। अच्छा ठीक है, तो 100 रुपया बैंक ने जो डिपॉजिट लायबिलिटी एक्सेप्ट की है, उसमें से कितना बैंक क्या चाहेगा? बैंक क्या चाहेगा कि एक्स की जगह पर क्या क्या वैल्यू हो, ताकि मैं पूछता रहूं ताकि पता तो चले कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। बैंक कोई होगा जो प्रॉफिट पर जो ओरिएंटेड होगा, सिर्फ प्रॉफिट जो चाहिए जिसको, वो एक्स की जगह पर क्या वैल्यू चाहेगा कि क्या हो जाए, कितना पैसा हम आगे लेंडिंग कर सकें? 100 के 100। बिल्कुल सही बात है, बैंक तो यही चाहेगा कि 100 आवे और 100 का 100 हम यूज कर ले जाएं, मैक्सिमम यूज कर सकें, मजा आ जाए। बोला हाँ ठीक बात है, जितना ज्यादा पैसा इस्तेमाल करने को मिलेगा उतनी ज्यादा चेन्स, उतने ही अधिक चेन्स बनाई जा सकेंगी। जो अभी चेन्स हमने देखी थी मल्टीप्लायर वाली, है कि नहीं है भाई? तो बैंक तो यही चाहेगा। लेकिन क्या ये उचित है? कल को उसको जरूरत पड़े, आपकी लायबिलिटी है, कल को किसान को आवश्यकता पड़े, तो क्या फिर वो कहां से पैसा दोगे उसको? तो कुछ मिनिमम होना चाहिए कि नहीं, कि भाई इतना पैसा तो रखो कम से कम अपने अकाउंट में, जितना तुमको लायबिलिटी मिला है उसका पूरा का पूरा हम नहीं इस्तेमाल करने देंगे। तो इसके लिए कोई रेगुलेशन जैसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई, कि कोई लिमिट फिक्स होना चाहिए, है ना? बिना जाने कूदिए मत आगे। मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ, हम लोग नॉलेज का, मैं ये आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जनरली कि हम लोग नॉलेज का जो है वो पान करने, प्रदर्शन के लिए नहीं, पान करने के लिए आए हैं विज्ञान का। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आगे आगे बढ़ के जो है वो करना चाहिए। खूब धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे कंसेप्ट को समझते चलेंगे, एकदम जल्दबाजी नहीं करेंगे। सबको साथ, सबका साथ सबका विकास जो है वो करना है हमको, है कि नहीं? तो कोशिश तो यही रहेगी बैंक की सब यूज करें, लेकिन नहीं, सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है कि देखो अब ऐसे करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। तो बैंक पूछता है कि क्यों नहीं ठीक होगा, आपको क्या दिक्कत है? अगर हम प्रॉफिट कमा ले रहे हैं, हम पैसा तो उसको दे ही देंगे ना, आपको क्या दिक्कत है जब उसको दिक्कत नहीं है, किसान को? तो बोला कि अगर कहीं इस बिच्चे में अगर हल्ला उड़ा कि इस बैंक के पास पैसा नहीं है अब देने को, तो ये जितना लोग है ये सब लाइन लगा लेगा कि नहीं, ये बताओ? जितने भी लोग तुम्हारे पास किसान के जैसे जितने भी लोग डिपॉजिट किए होंगे, सब खड़े हो जाएंगे कि नहीं लाइन में? तब क्या करोगे भाई? तब दे पाओगे पैसा? तो बोला वो तो वैसे भी नहीं दे पाएंगे जब हम चैन पर काम करते हैं। बोला नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो,
यदि तुम कुछ थोड़ा बहुत पैसा अपने पास बनाए रखोगे तो ये हल्ला ही नहीं उड़ेगा कि इस बैंक के पास पैसा नहीं है। क्या आप, इतना आसान नहीं है कि सीआरआर और एसएलआर समझ लें और हो गया। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है ना भाई, आप समझिए। कंज्यूमर बिहेवियर समझिए, डिपॉजिटर का बिहेवियर। सरकार कह रही है बैंक से कि बात ये नहीं है, तुम्हारा तो बिजनेस मॉडल ही वही है कि छोटे से पैसे में से बड़ा पैसा बनाते हो झूठ मूठ का। ये बात हम समझते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम थोड़ा बहुत पैसा अपने हाथ में रखोगे तो कभी ये हल्ला नहीं, पैनिक नहीं क्रिएट होगा कि इसके पास पैसा ही नहीं है देने को। तो कम से कम थोड़ा बहुत पैसा अपने पास बचा के रखो। जितना डिपॉजिट आपके पास आया हो उसमें से कुछ ही हिस्सा आप जो है वो कर सकते हैं, कुछ हिस्सा आपको बचा के रखना पड़ेगा। समझ गए यहां तक बात? ये बात क्लियर है सबको कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कुछ ना कुछ हैंड में होना ही चाहिए। हाँ, तो जो हम सरकार बोल रहे थे, रमाकांत उसको आरबीआई बोल रहा है। जो हम जया ने जो सीआरआर की बात की थी वो यही लिमिट है, यही लिमिट है। तो बात लेकिन वहां तक रुकती नहीं है, हम आपको पूरा पिक्चर समझाना चाहते हैं, इसीलिए आपको रोका मैंने बीच में। आप लोग कोई प्लीज बुरा मत मानिएगा इस चीज का कि जो है इस तरह से कैसे सर बोल रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात है, आपके भले के लिए। आपको लॉजिकली मैं इंड्यूस कर रहा हूँ माइंड को, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए क्लास नहीं चलती है, मार्गदर्शन। ओके, आपको आपके माइंड को इग्नाइट करने के लिए चलता है, यहाँ इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम नहीं है अपना। तो डिपॉजिट लायबिलिटीज, उसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। डिपॉजिट लायबिलिटीज ₹100, ऑल राइट, यहाँ तक तो हम समझ गए थे। उसमें से मान लीजिए सरकार ये नियम रख दे कि, या मान लीजिए बैंक चाहता है कि 80 का 80 रुपया जो है 90, 100 का 100 रुपया वो मैं बांट दूं, बैंक ये चाहता है, ठीक। लेकिन सरकार कहती है, यानी आरबीआई कहता है, मान लीजिए आरबीआई क्या कहता है कि नहीं भाई नहीं, एक चेक पॉइंट यहां पर आएगा। पहला चेक पॉइंट यह आएगा कि आप कितना रुपया उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा चेक पॉइंट क्या आएगा जी कि आप पैसा दे किसको रहे हैं, आप जिसको दे रहे हैं वो सिक्योर है या रिस्की है। समझ गए बात? तो जो पहला फिल्टर है यहां पे जो लगा हुआ है, इसकी सरकार कहती है कि नहीं, आप पूरा का पूरा अमाउंट नहीं यूज करिए, थोड़ा सा बचा के रखिए। पीसी को जया ने कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूं इस चीज को, जिसने भी सीआरआर वगैरह लिखा एकदम सही बात है। पीसी को सीआरआर कहते हैं, बहुत आसान है। और जो दूसरा चेक पॉइंट है कि जितना देने को अलाउ कर रहे हैं वहू को सही से यूज करो। समझो बात? पॉकेट मनी, जब बाप बेटे को पॉकेट मनी देता है तो हिसाब से देता है कि जितना मेरे पास है उसका ये हिस्सा आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी जरूरतें इतनी सीमित है, इससे ज्यादा नहीं देंगे। और पॉकेट मनी देने के बाद भी होता है कि इसको जो है वो इसमें मत उड़ा देना। दो एस्पेक्ट आते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि पहले तो ये तय होता है कि 100 में से कितना इस्तेमाल कर पाओगे। माना कि सरकार कहती है कि 20 रुपया तो आपको किसान के अकाउंट में छोड़ना ही पड़ेगा, वो नहीं इस्तेमाल करने देंगे, 80 ही इस्तेमाल कर सकते हो। यही कैश रिजर्व रेशियो हो गया, खत्म खेल। बहुत आसान है। 20% हो गया वो क्या हो गया? सीआरआर हो गया। और दूसरा फिल्टर क्या है कि ये जो 80 भी है इसमें से कम, मान लो हम कहें कम से कम 30% ऐसी जगह पे लगाओ जहां से पैसा तुरंत आ जाने की संभावना हो, जैसे जरूरत पड़े वैसे का वैसे। ये जो 30% है वो एसएलआर है, बाकी परिभाषा रखते रहिए, कोई फायदा नहीं है। यही कंसेप्ट है बस। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, कोई पूछ रहा है, तो अब आप समझते हैं कि ये वो रेशियो है जो सरकार डिसाइड करती है कि जितना बैंक लेंड कर रहा है उसका इतना % कम से कम सिक्योरिटीज में, ऐसे एसेट्स में, गोल्ड में, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करिए जिसमें से जरूरत पड़ने पर फट से पैसा आ जाए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से भी ज्यादा कोई सिक्योर इन्वेस्टमेंट है क्या? सरकार की भी सिक्योरिटी से ज्यादा जो सिक्योरिटीज मार्केट में होती है वो भी आपको बताएंगे। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज मार्केट में खरीदी बेची जाती है उनसे भी ज्यादा सिक्योर, गिल्ट एज्ड बोलते हैं। अब आप पता लगाइएगा कि गिल्ट एज्ड का क्या मतलब होता है। तो बात समझ गए आप? तो जब रेगुलेशन नंबर 1 यहाँ आता है, रेगुलेशन नंबर 2 यहाँ आता है, सिंपल सी बात है कि जब बैंक कहे कि इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इतना किसान के अकाउंट में छोड़ो, तो समझ लीजिए कैश रिजर्व रेशियो कि इतना कैश रिजर्व में रखो। सिंपल सी बात, इतना कैश कम से कम रिजर्व में रखिए, इतने %, वो हो गया कैश रिजर्व रेशियो। और जितना करने दे रहे हैं तुमको लेंडिंग, उसमें से भी इतना कम से कम सुरक्षित जगह पे करो लेंडिंग। ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया कि जब जरूरत पड़े तब लिक्विडिटी फट से आपके पास आ जाए, है कि नहीं है? जितने जरूरत पड़े उतना लिक्विडिटी फट से आ जाए, तो एसएलआर हो गया, मैटर खत्म। तो उसमें क्या परेशानी की बात है? अब आपको एक केस स्टडी बताता हूं मजेदार, है ना, आपको अच्छा लगेगा सुन के।
क्या समय हो गया? 9 बज रहे हैं। कितने बजे शुरू किया था हम लोग? 7:45 छोड़ दो। ग्रेट डिप्रेशन एनाटॉमी एक केस स्टडी है। अब मैं नहीं चाहता, आपको ओवरलोड नहीं करना चाहता, इसलिए ये हम कल पढ़ेंगे या अगले क्लास में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। ये इसलिए शामिल किया है, 1929 में आप जानते होंगे कि ग्रेट डिप्रेशन वो 8:32 पे कहाँ शुरू किया है बे रमाकांत? 8:32 तो टोटल अभी कितना, इतने देर पढ़ा है? 25 मिनट। 7:32, हाँ वही कम। तो ठीक है, ये हम जो है, मैं कह रहा था कि ग्रेट डिप्रेशन का एग्जांपल 1929 वाली जो हुई थी इसलिए लिया है ताकि आप पहले चैलेंज को समझिए, बीमारी को पहले समझ लीजिए, और फिर आप समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई का रोल आता कहाँ है। ठीक है, या आरबीआई ही नहीं, सेंट्रल बैंक कोई क्यों होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, मनी सप्लाई कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्रेट डिप्रेशन के केस स्टडी को अगर हम समझ लेंगे, जो कि हाउसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड थी तब भी, और 2008 में भी क्या हुआ, घूम घुमा के हाउसिंग सेक्टर पे ही आया, तो आप समझ जाएंगे कि कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन वगैरह आता है, रिसेशन और डिप्रेशन आते हैं, और कैसे मॉनेटरी पॉलिसी उसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकती है, क्यों जरूरत पड़ती है इंटरवेंशन करने की। ये हम अगले क्लास से शुरू करेंगे, टेक ऑफ करेंगे। ऑलराइट, नाउ आई ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चन एंड आंसर इफ एनी। अब आप, अरे सॉरी वॉरी नहीं भाई, अरे मजा मजा थोड़ा बहुत तो करने दो। हम समझते नहीं है कि हम 7:32 से शुरू किए थे। हाथ हाथ रेज करो भाई कोई। ठीक है, आगे नॉट दिस। नहीं भाई, हाँ ओके, सो दिस जस्ट अ मिनट। ठीक है, आई डोंट थिंक, अगर है कोई क्वेश्चन तो आप नोट तो करते ही रहिए। आप नेक्स्ट जब हमारा होगा तो आप बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको रेज कीजिएगा क्वेश्चन और उसका आंसर किया जाएगा। अभी इसको आत्मसात करिए अच्छे से। M1 M0 एक दो चीज ऐड करता हूँ। प्लीज। ये जो बार्टर सिस्टम और एक मनी एक्सचेंज जो समझाया शौर्य ने, इसको आप जरा इकोनॉमी से हिस्ट्री से रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि जो साम्राज्य का और राज्य का उदय हुआ, जो गणराज्यों का उदय हुआ, व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ, क्या वह बगैर मुद्रा के हो सकता था? अब आप इसको देखिए, हर लेक्चर को आप एक कोशिश करिए कैसे हम इसको जोड़ सकते हैं, कैसे इसको हम ऐड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आयामों के साथ। अगर वो आपने सीख लिया तो शायद एक बड़ा काम सिस्टम का अपने हो गया। तो जब आप ये समझने लग जाओ कि किसी भी पढ़ाई का, किसी भी अध्ययन का एक भाग दूसरे भाग से कैसे जुड़ता है, तो शायद काफी आसान हो जाएगा। तो अगर आप इसको, जो पूरा लेक्चर मैंने सुना, जो उस पूरे लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्या एक पार्ट तो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, तो आप लोगों का हो गया। नाउ कम सी अंदर कि जो साम्राज्यों का उदय हुआ, जो व्यापार का विस्तार हुआ, जो भारत एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हुआ, या विश्व की अर्थव्यवस्था ने, या विश्व के सारे भूभाग एक हुए, जो एक यूरोपियन जो यूरोप में उपनिवेशवाद जो शुरू किया, साम्राज्यवाद शुरू हुआ, क्या वह बगैर मुद्रा के विस्तार के संभव था? चीज बड़ी नहीं है, चीज छोटी सी है, सिर्फ 2-4-5 लाइन में बड़ा लंबा। जैसे ही आपके दिमाग में ये खाका साफ हो गया कि मुद्रा ने किस तरह से हमारे भौतिक जीवन में परिवर्तन किया, जो हमारे राष्ट्र राज्य की अवधारणा को प्रभावित करता है, आप उसी को अगर आपने ऐड कर दिया, काम आपका हो गया। मैं बार बार कहता हूं, लिखना आपको सिंपल ही होता है, लेकिन वो सिंपल में कैसे कंटेंट अच्छा आ जाए, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट इज वर्ड? क्या है, अब आप लोग थोड़ा से ज्यादा लेक्चर के यूज टू होइए, एक लेक्चर से काम नहीं हो पाएगा। वी हैव ए लॉट टास्क इन आवर हैंड, वी नीड टू डू 2 लेक्चर्स पर डे। जनवरी से फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो 3-4 टीचर और शायद पढ़ाने आएंगे। मुदित जैन बहुत जल्दी पढ़ाने आ रहे हैं। तो आप देखिए, टीचरों की तादाद बढ़ रही है, और सब टीचरों को एक साथ अगर हम यूज नहीं करेंगे तो सिलेबस नहीं होगा। अगर हम हर दिन में एक ही क्लास कराएंगे तो सिलेबस नहीं हो सकता है।
तो यू नीड टू रेडी मोर देन वन क्लास। सर कब से आ रहे हैं मुदीर जैन, कब बात हुई उनसे? सर मेरी पिछले हफ्ते बात हुई थी सर, ऑफिस से ही मैंने कॉल किया था सर, तो वो रिकवर हो रहा था सर, उसको शायद कोविड या कुछ हुआ होगा सर। ओके 10 दिन हफ्ता भर और जोड़ लीजिए बस सर, मैक्सिमम। ओके ओके। तो क्या करें, मुदीर जैन का क्लास रेगुलर चलाएंगे। मुदीर जैन के पास अपनी, हर आदमी के पास अपनी एक्सपर्टीज होती है। मुदीर जैन का जो कन्वर्सेशन है, इंटरेक्शन, वो भी अपने आप में एक नायाब आपको एग्जाम्पल देगा। जो चौथा पेपर है इथिक्स का, सॉरी GS4 का जो चौथा पेपर इथिक्स है, उसमें उनकी मास्टरी है, एक्सपर्टीज है। लेट हिम हैंडल दिस इशू। जो आपके GS4 का जो पार्ट बी है, जिसमें सिचुएशन रिएक्शन आता है, उसको हम लोग एक टीम की तरह करेंगे। मैं है, शौर्य है, मुदित है, इति है, हम लोग सब एक साथ एक आंसर तलाशने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो दूसरा पार्ट एथिक्स का, उसका एक आंसर तो होता नहीं है। अगर आप हार्वर्ड में जाइए, नाम मिस कराओ, एक आदमी बहुत से सिचुएशन क्रिएट करता है, नाम मिस कराओ उसका, अपूर्वा को मैंने सुनाया था, अपूर्वा ने उसको बहुत सुना था। तो हमेशा सिचुएशन, मैं अभी नाम याद है, बताता हूँ मैं उसका। आप जस्ट टाइप करो हार्वर्ड जस्टिस, गूगल में आपको आदमी मिल जाएगा। तो अगर आप सुनो तो क्या है, एक आंसर, एक ही सिचुएशन पे आंसर एक ज्यादा होते हैं। जिसने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था कि एक ट्रॉली जा रही है, 2 मजदूर काम कर रहे हैं, तो ट्रॉली अगर चलेगी तो 2 मजदूर मर जाएंगे। अगर ट्रॉली रोकी जाएगी तो ट्रॉली बगल में गिरेगी जहां पर 5 मजदूर सोए हैं, तो आप 2 मजदूर को बचाओगे, 5 मजदूर को बचाओगे। उस सवाल के जवाब में ऑडियंस के बहुत से ओपिनियन आए, और बाद में उसने 5 मजदूर को मारा, 2 मजदूर को सिर्फ बचाया। तो अगर एक कॉमन सेंस आदमी बोलेगा, वो मैन पावर से जाएगा कि 2 आदमी है, उनको आप मारो, 5 को बचाओ। तो इस तरह जो आपका पार्ट भी है, उसका डिस्कशन से आंसर आता है। तो विल सी कि हाउ इट कैन बी हैंडल। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते से आना हो जाएगा स्टार्ट। तो राइट नाउ वी स्टार्ट मोर क्लासेस, एटलीस्ट 10-12 क्लासेस a वीक हम लोग करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखते हैं जैसे आप लोग इसको सर्वाइव कर पाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, थोड़ा सा आत्मसात कीजिएगा, और कुछ और सोर्सेज से अगर आप स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं और कुछ नई चीज मिलती है तो अगले क्लास में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आई एम नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग, जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।